बरकत दें। Let's turn to the book of Luke, chapter 1. आइए निकालेंगे लूका की इंजील, उसका पहला अध्याय, and we are going to read it 38वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who was called barren. For with God nothing shall be impossible. Amen. And Mary said, Behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होएगा खुदा का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन खुदा की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। Lord Jesus, we thank you for the reading of this word. Now break this bread of life for us and feed thy lambs. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. Amen. Amen. Can be seated. बैठ सकते हैं आप। Amen. Amen. We'd like to straight away move in this message. हम सीधे सीधे संदेश में आगे बढ़ना चाहेंगे। The spoken word is the original seed. मुंह से बोला गया वचन ही मूल बीज है। May God give you and I grace to understand it. काश खुदावंद आपको और मुझे अनुग्रह दे ताकि हम इसको समझ सकें। And let's try to really catch the thoughts which God wanted to bring to us through this prophet. और ऐसा हो कि हम इन विचारों को पकड़ सकें जो खुदावंद इस नबी के मार्फत से लेके आना चाहते थे। Amen. आमीन। Just for a small testimony, एक छोटी गवाही के तौर पर, yesterday I heard a message कल मैंने एक संदेश सुना from one brother Gabriel, एक भाई गैब्रियल से, and he is from Romania. और वो रोमानिया से हैं। And I was so happy और मैं इतना खुश हुआ that he is preaching exactly the same thoughts. कि वो सटीकतापूर्ण उन्हीं विचारों को प्रचार कर रहे थे। And he was preaching that in Brother Chad Lamb's church. और भाई चैड लैम के चर्च में वो प्रचार कर रहे थे। And it's exactly the same thoughts that God brought to us. और वो सटीकतापूर्ण वही विचार थे जो खुदावंद हमारे पास लेके आए। And so I know that this is the dealing of the Holy Ghost, तो मैं जानता हूं ये पवित्र आत्मा की डीलिंग है, which is moving around the world. जो कि विश्वव्यापी रूप में चल रही है। And I can see that the same Holy Spirit is dealing with you and us. और मैं देख पाता हूं कि वही पवित्र आत्मा और आपकी और मेरी सुधि ले रहे हैं। So God bless everybody. सो खुदा प्रत्येक को बड़ी बरकत दे। And the basic purpose of this preaching is not just preaching. तो प्रचार का मुख्य उद्देश्य केवल प्रचार ही नहीं है, It's because we now are becoming the word. लेकिन ये इसलिए ताकि अब हम वचन बन रहे हैं। When we become the word, we become lesser and lesser of the flesh. जब हम वचन बनते हैं तो हम शरीर में और घटते चले जाते हैं। What the flesh desires and lusts for and says decreases. जो शरीर की वासनाएं होती हैं, जो उसकी इच्छाएं होती हैं, वो घटने लगती हैं। And what the flesh does, और जो शरीर करता है, and that goes down. और वो घट जाता है। And the mind of Christ और मसीह का मन
comes in us हमारे अंदर आता है that we start doing exactly what Christ says. कि हम वो ही करते हैं जो मसीह कहते हैं, And that sort of reflects in our everyday life. और ये हमारे प्रत्येक रोज की जिंदगी में ये झलकता है। It reflects in our dealing with fellow brothers and sisters. संगी भाइयों बहनों के साथ जो हम करते हैं उसके साथ वो झलकता है। And it reflects in our jobs, हमारे कामों में ये झलकता है, in our families, हमारे परिवारों में, and in everything we do and say. और हर एक चीज जो हम करते हैं और कहते हैं। Let's try to understand. आइए समझने की कोशिश करें। Every one of us are born in this nation, हम में से प्रत्येक इस राष्ट्र में पैदा हुआ, but once you receive the Holy Ghost, लेकिन एक दफा जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं, you're neither an American or a German or an Indian or for that matter anybody. ना आप अमेरिकन हैं, ना जर्मन है, ना मैं कहूंगा हिंदुस्तानी, चाहे कुछ भी हो। You are a child of God आप खुदा के बच्चे हैं, in His image, उनके स्वरूप में, and you start thinking and doing what He says. और आप वो सोचने लगते हैं और वो करने लगते हैं जो वो कहते हैं। Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? And it's not the nature of Christ to lie. और ये मसीह का स्वभाव नहीं है झूठ बोलना। If we speak lies with each other, अगर हम एक दूसरे के साथ झूठ बोलें, that means we are still not transformed. इसका मतलब यह है कि हम अभी तक हम बदले नहीं हैं। We are hearing the message by our ears. हम संदेश अपने कानों से सुनते तो हैं, Nothing has happened here. लेकिन दिल में कुछ नहीं हुआ। I got so many souls. मैं इतनी रूहें लेके आया। God bless you, you can. खुदा बड़ी बरकत दे, आप कर सकते हैं, But you can still be lost. लेकिन आप फिर भी बर्बाद हो सकते हैं, Because the Bible says these things. कि बाइबल इन चीजों को बताती है। You yourself need a perfect conversion. आपको स्वयं एक सिद्ध बदलाव की जरूरत है, That you are converted in your soul. कि आप अपने प्राण में बदल जाएं। And the purpose of preaching these messages is that your soul is converted. और इन संदेशों का प्रचार का एक ही उद्देश्य है कि आपका प्राण बदल जाए। This is the baptism of Holy Ghost in word form. ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वचन के रूप में। And the evidence of the Holy Ghost is you become the word and manifest the word for your age. और पवित्र आत्मा का प्रमाण यह है कि आप वचन बन जाएं और अपने युग के वचन को आप प्रकट करें। We are not here to fulfill our local traditions हम यहाँ पर अपने स्थानीय रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए नहीं है, and some friendships या कुछ दोस्तीबाजी, or some relationships. या कुछ रिश्तेदारी। We are here for one purpose, हम यहाँ पर एक मकसद से हैं, to be called the bride of Christ कि मसीह की दुल्हन कहलाएं and to go from glory to glory और महिमा से महिमा में आगे बढ़े by His power of transformation उनके रूपांतरण की सामर्थ के द्वारा, in His very image. उनके स्वरूप और समानता में। And when we come to that image, और जब हम उस स्वरूप और समानता में पहुंचते हैं, we think like Him, हम उनके मानंद सोचते हैं, we speak like Him, हम उनकी तरह बोलते हैं, and we become just Him. और हम वही बन जाते हैं। And that will be the condition of some people और ये परिस्थिति, ये हालत होगी कुछ लोगों की who are ready for the rapture. जो तैयार है रैप्चर के लिए। Let me say something. मैं कुछ कहना चाहता हूं। That doesn't mean that we don't do mistakes, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलतियां नहीं करते, but we have that blood. लेकिन हमारे पास वो खून है। But let me tell you, it's something like this. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये कुछ इस प्रकार से है। Slowly and gradually, the carnal part will just move down, 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 and the spiritual part will just go up, up, up. धीमे धीमे क्या होगा, जो शारीरिक हिस्सा है वो नीचे 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 होता चला जाएगा और जो आत्मिक हिस्सा है वो ऊपर 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 बढ़ता चला जाएगा। I think you're understanding it. मैं सोच रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। Don't speak lies. झूठ मत बोला It करें, doesn't look good in a church. चर्च में ये अच्छा नहीं लगता। Don't speak lies with each other. एक दूसरे के साथ झूठ ना बोले। There are some on whose face I can say you are a liar. कुछ हैं जिनके मुंह पे मैं कह सकता हूं कि आप झूठे हैं, You lied. आपने झूठ बोला। And I can say this. और मैं ये कह सकता हूं, Don't lie in the church of the living God. Hananiah and Sapphira did exactly that and they paid. जीवते खुदा की कलीसिया में झूठ ना बोले। हनानिया और सफीरा ने यही काम किया था।
So don't lie in the church of God. सो खुदा के जीवित कलीसिया में झूठ ना बोले, Don't hide facts. सत्यों को छुपाए ना, Be simple साधारण रहे and plain before God, और खुदावन के सामने बिल्कुल स्पष्ट और साफ रहे, and you will earn the grace of God. और आप खुदावन के अनुग्रह को कमाएंगे। But if you play games, लेकिन अगर आप खेल खेले, He will play a bigger game with you. ये आपके साथ एक बड़ा खेल खेलेंगे, And once you are entangled in His game, और एक दफा आप इनके खेल में उलझ गए, like Ahab did one day, जैसे अहाब ने एक दिन किया था, that will be the end. तो मैं कहूंगा ये खात्मा होगा। So don't play games with the people of God. खुदा के जनों के साथ खेल ना खेले, Don't be a hypocrite एक पाखंडी ना बने and don't lie. और झूठ ना बोले, Don't misrepresent facts. सत्यों को गलत रिप्रेजेंट ना करें, You'll be held responsible. आप इसके लिए जिम्मेदार ठहरेंगे। I say it on your face. मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं, You will be held responsible, brother, on the day of judgment. न्याय के दिन मेरे भाई आप जिम्मेदार ठहरोगे। Only way is repentance. केवल मात्र तरीका है तौबा। Don't misrepresent facts. सत्यों को गलत ना बताएं। I thought, अरे मैंने ऐसे सोचा था, does it matter? क्या इससे फर्क पड़ता है? What you thought. जो आपने सोचा, What matters is what the real facts are. बात क्या कहते हैं, इस बात से फर्क पड़ता है कि सत्य है क्या, The real facts. And don't change facts. और सत्य को बदले नहीं। God doesn't like it. खुदा पसंद नहीं करते। And that is why these are small little things I'm saying. This shows that we are still carnal. ये बातें इस बात को दर्शाती कि हम अभी भी शारीरिक हैं। And after so many years of preaching, प्रचार के इतने सालों के बाद, but I know there will be some, yes. लेकिन मैं जानता हूं कुछ होंगे, They are getting transformed. वो बदलते जा रहे हैं। You see, the beauty of this message is you will not be what you are. आप देखें संदेश की खूबसूरती ये है, आप वो नहीं रहेंगे जो आप थे। If you still are what you are, what's the use of coming to the church? और अगर आप वही बने रहे जो आप पहले थे, तो इस चर्च में आने का फायदा क्या? What kind of transformation do you boast of, brother? मेरे भाई मेरी बहन, किस रूपांतरण से आप घमंड करते हैं? I'm saying, brother, what kind of transformation in your life do you boast of? अपने जीवन में किस प्रकार के रूपांतरण की आप का घमंड करते हैं? Can you say that? क्या आप इसको कह सकते हैं? That's why I say this. इसलिए मैं इस बात को कहता हूं, The purpose of this message is you don't remain carnal. इस संदेश का जो मकसद है वो ये है कि आप शारीरिक बने नहीं रहते। Paul said, पौलुस भाई ने कहा, mortifying the deeds of flesh शरीर के कामों को मारते हुए and the lusts of flesh. और शारीरिक अभिलाषाओं को मारते हुए। Flesh has envy, flesh has jealousy, flesh has murders, thefts, lies, pride. These are the things of flesh. शरीर के काम जो है वो प्रकट है, जैसे पौलुस भाई बता रहे हैं, उसमें गुस्सा है, उसमें वासनाएं हैं, उसमें ईर्ष्या है, उसमें कपट है, ये तमाम चीजें हैं। These things have to die इन चीजों को मरना जरूरी है to bring you in rapturing condition. ताकि आप रैप्चर वाली हालत में आ सकें। And the purpose of the message is to bring you exactly there. और संदेश का जो उद्देश्य वास्तविकता में यह है कि आपको वहां लेके आए। You say, I heard it. आपने कहा मैंने इसको सुना था, God bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। But if you heard it, लेकिन अगर आपने सुना है you don't hear it here. तो कान से ना सुने, You hear it here. दिल से सुने। You hear it from this. आप यहां से सुने, से सुनते हैं. आप यहां से सुनते हैं। And the evidence that you heard is you are changed. और प्रमाण इस बात का कि आपने सुना वो ये है कि आप बदल जाते हैं। The prophet said the thing is that this wheat needs to lay in the presence of the sun to get ripened. नबी ने कहा जो आवश्यकता है इस गेहूं की वो ये है कि वो उस सूरज की उपस्थिति में पड़ा रहे ताकि पक जाए। All that greenness is baked out of you.
तमाम जो हरापन है आपसे पककर निकल जाए, and you become that matured grain ready to be gathered in the garner. और आप वो परिपक्व दाना बने ताकि आप खत्ते में इकट्ठा किए जाएं। Are you understanding it, brother, क्या समझ sister? रहे मेरे भाई मेरी बहन? God bless you. खुदा बड़ी बरकत दे। The reason I'm saying these things, जिस कारण से मैं इन बातों को कह रहा हूं, this message brings a transformation. ये संदेश एक रूपांतरण लाता है, And may it happen in your lives, and may you see it and bear witness of it. काश ये आपके जीवन में हो और आप इस बात के गवाह ठहरें। God bless you. खुदा बड़ी बरकत दे। Now, straight away move further in the message अब मैं सीधे सीधे संदेश में आगे बढ़ता हूं and try to show you some things. और आपको कुछ बातें दिखाने की कोशिश करता हूं। A few thoughts I've shared here and there, कुछ विचार मैंने यहाँ वहां मैंने शेयर किए थे, but I have a very, very important message today. लेकिन आज मेरे पास बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संदेश है। And may God give you grace to understand it और काश खुदा आपको अनुग्रह प्रदान करे ताकि आप इसे समझ सके and me to preach it. और मुझे ताकि मैं इसको प्रचार कर सकूं। So God bless you. सो खुदा आपको बड़ी बरकत दें। Amen. आमीन। Now, can you put this up, brother? Because we have to do some writing also. I'm going back to that paragraph 76 of Spoken Word is the Original Seed, part 2. और मुंह से बोला गया वचन ही मूल बीज है, उसके मैं 76, 76 अनुच्छेद में जा रहा हूं, part 2. भाग 2। Now, God said, अब खुदा ने कहा, multiply to his bride, अपनी दुल्हन से कहा बढ़ जाओ, to Adam's bride, आदम की दुल्हन से, and replenish. और पृथ्वी में भर जाओ। Multiply and replenish the earth. बढ़ जाओ और पृथ्वी में फैल जाओ। That was God's commission. ये खुदा की आज्ञा थी। Commission means a mission. कमीशन का मतलब एक ठहराई हुई सेवकाई। It's a work which God was giving. एक काम था जो कि खुदावन इस आदमी और इसकी पत्नी इसकी दुल्हन को दे रहे थे। It was God's commission. ये खुदावन की तरफ से ठहराई हुई एक का काम था। And she would have done it, और वो इसको करती, and he would mixing themselves together. But what happened? And she would have done it, and he would. And Adam and Eve would have done it, आदम और हव्वा ने इसको किया होता, mixing themselves together. अपने आप को एक साथ मिलाया होता। But what happened? लेकिन क्या हुआ? When Adam got ready to come to her, जब आदम तैयार हुआ कि उसके पास आए, she was already a mother. वो पहले से मां बन चुकी थी। She was pregnated by another seed, you know it. आप जानते कि एक और बीज के द्वारा उसने गर्भधारण किया था। See what I mean? समझ में आ रहा है मेरा मतलब क्या है? Now this is a thought we have been seeing for quite many Tuesdays. अब ये विचार है जो कि हम कई मंगलवारों से देख रहे हैं, And that is that these brides, we are going to see those 3 brides again today, they couldn't wait. और हमने जैसे पिछली बार भी देखा था, कुछ मंगलवार से हम देख रहे हैं कि ये जो 3 दुल्हनें हैं, ये इंतजार नहीं कर पाई। So they had carefully. अब इसको ध्यान से सुनिए। My brothers who translate, and not just Brother Nishchal, Brother Joshua is here, and Brother Nishant also helps me. I would like to apprise you, brother, what responsibility you have. The reason I'm preaching in English, I know it. There are so many people in various countries who are right now tuned to this message, or they tune and listen to it, and they can't understand Hindi. They understand English only. So it's not just the visible crowd, it's a huge portion of the invisible Amen. crowd that benefits from that English which we preach. So, but the Hindi part benefits those who are here and in our country. That's right. ये हिंदी वाला हिस्सा है जो कि आपको और मुझे लाभ, आपको और हमको लाभप्रद करता है, लेकिन ऐसे बहुतेरे हैं जो कि विदेशों में और इस देश के भी ऐसे भागों में रहते हैं जहां हिंदी समझते नहीं है। इसलिए मैं इंग्लिश में प्रचार करता हूं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। That's right. ये बात सही है। For making you understand things, sometimes I come to Hindi, but actually they understand when I preach in English. आपको कई बार समझाने के लिए मैं हिंदी में उतर आता हूं, लेकिन वास्तविकता में वे लोग ऐसे हैं जो कि केवल इंग्लिश समझ पाते हैं। So there's a responsibility for the preacher as well as the translator. तो प्रचारक और जो ट्रांसलेटर है, जो अनुवादक है, उस पे एक भार है। And so please try to pay a little more attention and you'll be able to understand. और थोड़ा और अटेंशन डालने की कोशिश करें, आप समझ पाएंगे। God bless you. खुदा बड़ी बरकत दे।
Now, I'm going to ask you to read back Genesis chapter 1. मैं चाहूंगा कि आप दोबारा से पढ़ें उत्पत्ति पहला अध्याय। Let's go back to Genesis 1 आइए वापस आए उत्पत्ति 1 में and let's read that commission. और आइए उस कमीशन को हम पढ़ते हैं। We just read 1:28. हम पहला अध्याय उसकी 28वीं आयत ही पढ़ेंगे। And you know, 28 is the number of the sign of life. आप जानते हैं 28 की गिनती जो है वो जीवन के ऋतु का अंक है। Is that right? क्या बात समझ रहे हैं? At this time I will visit, and Sarah, according to the time of life, and Sarah shall have a son. जीवन के ऋतु के अनुसार मैं सुधि लूंगा सारा की, उसका बेटा होगा। 28th February the cloud came. 28 फरवरी बादल आया। According to the time of life. जीवन के ऋतु के अनुसार। And see, in that number 28, God has put that commission because it's concerned with that reproduction and life. और आप देखिए इस 28 के गिनती में खुदावन ने इस कमीशन को, इस आज्ञा को रखा है, इस ठहराई सेवकाई को रखा है, क्योंकि इसमें छिपा है वो जीवन जो आने वाला है। And God blessed them, that's male and female. And God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. और खुदा ने उनको आशीष दी, अर्थात आदम और हव्वा को, और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। This is the commission given to the man and his wife, bride, woman. यह है वो कमीशन, यह है वो ठहराई हुई सेवकाई जो कि आदम और उसकी दुल्हन हव्वा को दी गई। And I'll show you this is how the Bible begins in the Old Testament. और मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस प्रकार से बाइबल शुरू होती है पुराने ऐदनामे में। And when you come to the New Testament, और जब आप पहुंचते हैं नए ऐदनामे में, are you with me till now? क्या अब तक आप मेरे साथ हैं? Christ repeats that commission. मसीह उस कमीशन को दोहराते हैं। Because that commission has to be carried out. क्योंकि जरूरी है कि वो कमीशन पूरी की जाए। Eve couldn't continue it. हव्वा उसको कर नहीं पाई। If this commission would have been carried, अगर ये कमीशन पूरी हो जाती, then Adam would have spoken that word, कि आदम उस वचन को बोलता, and Eve would have conceived by that spoken word, और हव्वा उस मुंह से बोले गए वचन के द्वारा गर्भ धारण करती, and a child would be born. तो एक बेटा पैदा होता। But that couldn't be. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। Now, when he's giving the commission in Matthew, Mark, Luke, and John, अब जबकि वो इस कमीशन को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस कमीशन को मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में दे रहे हैं। especially Matthew and Mark. Yes, Matthew and Mark. खास करके मैं कहूंगा मत्ती में और मरकुस में। Go ye into all the world पूरे जगत में जाओ and preach the gospel और सुसमाचार का प्रचार करो and make disciples और चेले बनाओ and baptize them in the name of Father, Son, and Holy Ghost. और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। And lo, I am with you always, even unto the end of the age. और देखो मैं जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। Why is he saying that? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? Because to make disciples, this is a language you need to understand. अब देखिए ये एक ऐसी भाषा है जिसको कि आपको समझना जरूरी है। He's telling his disciples. अपने चेलों से कह रहे हैं। The disciples are not just disciples, that is his church. अब चेले केवल मात्र चेले नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। That's the female part. ये है वो नारी वाला हिस्सा। And that female part had to bring some children. और उस नारी वाले हिस्से को कुछ बच्चों को पैदा करना था। That is make disciples. और वे बच्चे पैदा करना क्या है? चेले बनाना। Bring them to the new birth. और पैदा करके उन्हें नए जन्म पे लेके आना। Bring them to the new birth. उन्हें नए जन्म पे लेके आना। So that they are also born again. ताकि वो भी नया जन्म पाए। Are you with me till now? क्या मेरे साथ हैं अब तक? And they say, I am with you always. और तब उन्होंने कहा कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। Why? क्यों? It requires the male and female together to bring a child. आप देखिए जरूरत पड़ती है नर की भी और नारी की भी, ताकि वो एक साथ मिले, ताकि बच्चा आ सके। Why is he saying, I am with you? हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। क्यों प्रभु यीशु मसीह कह रहे, देखो मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। It's my fellowship with you will pregnate you and help you to bring that fruit.
प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं? ये इसलिए कहा क्योंकि जब वो साथ होते हैं, एक संगति होती है, नर वो हैं, मादा कलीसिया जब वो एक साथ मिलते हैं, तब उस संगति के द्वारा जब वो वचन अंदर जाता है, उसके द्वारा बच्चे आते हैं, चेले आते हैं। That brings a pregnation. ये गर्भधारण लाता है, And that brings some children. और उससे कुछ बच्चे पैदा होते हैं। And what will happen? He said, go to the entire earth. और उन्होंने कहा पूरे जगत में जाओ। He repeats that same commission in Mark 16. मरकुस 16 में उन्होंने इसी आज्ञा को, इसी कमीशन को दोहराया। Go into all the world पूरे जगत में जाओ and baptize. और बपतिस्मा दो। He that believeth and is baptized is saved. जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा। And these signs shall follow them that believe. और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। It's called the Great Commission. इसे महान कमीशन कहते हैं। And the Great Commission is exactly Genesis 1:28 commission. और जो महान कमीशन है वो सटीकतापूर्ण वो ही कमीशन है जो कि उत्पत्ति 1:28 में लिखी है। Because that reproduction which couldn't take place in Eden, क्योंकि वो प्रजनन जो कि अदन की वाटिका में नहीं हो पाया, now would happen by the spoken word. अब घटेगा मुंह से बोले गए वचन के द्वारा। And some children will not be born by sex but by the word of God. अब कुछ बच्चे पैदा होंगे यौन संबंध के द्वारा नहीं, लेकिन वचन के द्वारा। Right from Ephesus till Laodicea and even today. इफसुस से लेकर लौदीकिया तक, मैं कहूंगा आज तक के, That was the commission God gave. ये थी वो आज्ञा, ये थी वो कमीशन जो खुदा ने दी। I think you're understanding it now. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे इसको अब। So when God, our Lord Jesus Christ, is giving that commission, He's actually rehearsing Genesis 1:28. तो प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के सामने इस महान कमीशन को बोल रहे हैं, तो वास्तविकता में उत्पत्ति 1:28 में दी गई कमीशन को वो दोहरा रहे हैं। Let me write out for you. आइए मैं इसको आपके लिए लिखता हूं। And may God give me grace. और काश खुदा मुझे अनुग्रह प्रदान करें। The Great Commission, महान ठहराई हुई सेवकाई कमीशन, which we find in Genesis 1:28 जैसे कि हम पाते हैं उत्पत्ति 1:28 में and in Matthew 28. और मत्ती की इंजील उसके 28वें अध्याय See में। the 28s. आप देख रहे हैं इन 28 को, Because it's concerned with the time of life. क्योंकि इसका संबंध है जीवन के ऋतु से। It's concerned with bringing some life. इसका संबंध है कुछ जीवन को पैदा करने से। And it's concerned with a woman. और इसका संबंध एक स्त्री के साथ है। And then in Mark chapter 16. और मरकुस की इंजील उसका 16वां अध्याय। Are you with me till now? क्या अब तक क्या आप मेरे साथ हैं? That's the Great Commission. यह है महान सेवकाई। And the Great Commission had 3 parts. और महान सेवकाई के 3 हिस्से थे। Number 1, सबसे पहला, be fruitful फूलो फलो, फलवंत हो and multiply. और बढ़ जाओ। I'm repeating it. मैं इसको दोहरा रहा हूं। In other words, bring more children. दूसरे शब्दों में और बच्चे और संतान पैदा करो। How? कैसे? Not by sex, यौन संबंध के द्वारा नहीं, but by the spoken word of God. लेकिन खुदा के मुंह से बोले गए वचन के द्वारा। Notice the modality we are talking about. आप देखिए उस मोडालिटी को, उस तरीके को जिसको यहां पे लिखा जाता है। This fruitfulness was not by sex. ये फलवंत होना सेक्स के द्वारा नहीं था। Sex brought death. सेक्स के द्वारा तो आप पाएंगे मृत्यु आई। But this would have been without sex by the word. लेकिन अगर यह किया जाता बगैर सेक्स के द्वारा, मुंह से बोले गए वचन के द्वारा, that child would never die. वो बच्चा, वो औलाद मरती नहीं। That couldn't happen in Eden. और ये चीज घट नहीं पाई अदन में। But it started from Pentecost. लेकिन ये चालू हुई पेंटिकोस्ट से। I'll show you some things. मैं आपको कुछ बातें दिखाऊंगा। First part of the commission is be fruitful and multiply. पहला हिस्सा कमीशन का है फलवंत हो और बढ़ जाओ। Number 2 is replenish the earth. और दूसरा है पृथ्वी में फैल जाओ। In other words, दूसरे शब्दों में, the purpose of the commission was not to congregate and just stay in one place. कमीशन का जो The second part of the commission was जो दूसरा हिस्सा है कमीशन का, वो ये नहीं था कि केवल एक जगह पे सिमट के रह जाओ। now see how devil attacked that commission in Nimrod. अब निम्रोद में देखिए खुद शैतान ने कैसे अटैक किया उस कमीशन को। Let us all build a tower आओ हम सब एक गुम्मट बनाए and let us stay here. और हम यहीं पर टिके रहे। What did God say? खुदा ने क्या कहा था? Spread out.
फैल जाओ पृथ्वी में। They wanted to stay in one place. वो एक जगह टिकना चाहते थे। So in order to bring his commission, he came down, तो अपनी कमीशन को लाने के लिए खुदावन नीचे उतर के आए, disturbed their plan, उनकी योजना पे खलल डाला, confused their language, उनकी भाषा में कंफ्यूजन भेज दिया, भ्रम भेज and दिया। what they didn't want to do, but was God's commission, was finally achieved. They spread out. और जो वो करना नहीं चाहते थे, वास्तविकता हमने क्या पाया, खुदावन की कमीशन पूरी हुई और वो पृथ्वी में फैल गए And they started going to different places. और वो विभिन्न स्थानों में जाने लगे। It was in the first church age also. पहली कलीसिया काल में भी ऐसे ही था, They spread out वो फैल गए and they went to various places ministering the gospel. और वो जगह बा जगह गए, अलग अलग स्थानों में खुदावंद के वचन की सेवकाई करते हुए। And that is the real purpose of this message, और वास्तविक मकसद इस संदेश का यही है, is not to just stay in one place, वो ये नहीं कि आप केवल एक स्थान पे टिके रहें, but it's to move and spread out as much as you can. लेकिन वो इस कमीशन का हिस्सा ये है कि आप जितना फैल सकते हैं, जितना दूर दूर जा सकते हैं, जाएं। And by the grace of God, we are doing it to some extent. और खुदावंद के अनुग्रह से हम कुछ हद तक इसको कर भी रहे हैं, That the message has gone to other places कि संदेश अलग अलग जगहों पे फैला है और गया है। and replenish the earth. पृथ्वी में फैल जाओ। The third part of the commission, और तीसरा हिस्सा कमीशन का, subdue it. इसको अपने वश में कर लो। Subdue it would mean have authority. वश में कर लो का मतलब अधिकार जमाना। Have authority over the earth, and it's not just the earth, over the fish, over the birds, in other words, over the nature. और इसको अपने अधिकार में, अपने वश में कर लो। अधिकार का मतलब केवल अधिकार का मतलब पृथ्वी ही नहीं, लेकिन पृथ्वी में पाए जाने वाले जो मछली हैं और जो चिड़ियाएं हैं और तमाम प्रकृति जो है, Have authority over it. इस पे आप अपना अधिकार रखो। These are the three parts of the commission. कमीशन के ये तीन हिस्से हैं। And mind you, when Lord Jesus gave the commission to his disciples, और ध्यान रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस कमीशन को अपने चेलों को दिया, he had exactly these 3 points in his mind. सटीकतापूर्ण ये तीनों पॉइंट्स खुदा प्रभु यीशु मसीह के विचारों में थे। At that time, I mean 2000 years back, 2000 साल पहले उस समय he knew which part of the commission will be fulfilled now. उन्हें मालूम था कमीशन का कौन सा हिस्सा आज पूरा होगा। It will be fruitful ये होगा फलवंत होना and replenish the earth. और पृथ्वी में फैलना। But as far as subdue it, लेकिन जहां तक बात है और ताल्लुक है इसको वश में करने का, remember that subduance was not just Eve, Adam and Eve together, and their children will subdue it. और ये जो वश में करना केवल आदम और हव्वा के लिए नहीं था, आदम और हव्वा और उनके बच्चों के लिए था जो आगे पैदा होंगे, वो इस पृथ्वी को और इस प्रकृति को अपने वश में कर लेंगे। Adam and Eve together will subdue it. आदम और हव्वा एक साथ मिलके इसको वश में करेंगे। And that will be fulfilled finally now in the millennium. और अब ये आखिरकार पूरा होगा मिलेनियम में। Now remember, 2000 years back, याद रखिए 2000 साल पहले when he was just about to be received in the cloud, जब वो तैयार थे कि वो बादल में उठाए लिए जाएं। in Acts chapter 1, I'm not reading because I have some other things. प्रेरितों काम पहले अध्याय में मैं पढ़ नहीं रहा, मेरे पास कुछ और बातें हैं। You can read it. The disciples asked him a question. आप पढ़ सकते हैं। चेलों ने उससे सवाल पूछा, Will you at this time restore the kingdom to Israel? क्या आप इस समय राज को बहाल कर देंगे इजराइल को? In other words, will you restore the kingdom? दूसरे शब्दों में, आप क्या राज को अभी बहाल करेंगे? What would that restoration of kingdom would bring? उस राज के बहालीकरण से क्या आएगा? It would bring Christ as a king, not just on Israel, but the entire earth. वो मसीह को राजा बनाएगा और लेके राजा के रूप में लेके आया, केवल इजराइल में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। What did Lord Jesus answer? प्रभु यीशु मसीह ने जवाब में क्या It's कहा? not for you to know the times and seasons. तुम्हारे लिए समयों और मौसमों को जानना जरूरी नहीं है। You just wait in Jerusalem, तुम केवल यहाँ यरूशलेम में इंतजार करो and you shall be endued with power from on high, और तुम ऊपर से सामर्थ पाओगे and you shall be my witnesses और तुम मेरे गवाह ठहरोगे to the ends of the earth. पृथ्वी की छोर तक के। In other words, दूसरे शब्दों में, you get busy with these first 2 parts. तुम इन पहले दो पॉइंट्स के साथ तुम बिजी हो जाओ। As far as authority is concerned, जहां तक बातचीत है अधिकार और वश में लेने की, I give you spiritual authority मैं तुम्हें आत्मिक अधिकार देता हूं over diseases, बीमारियों के ऊपर, over demons, दुष्ट आत्माओं के ऊपर over sicknesses. और बीमारियों के ऊपर। You shall drink
poisonous things and nothing will happen to you. और तुम विषैली चीजें पियोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। You shall take up serpents and nothing will happen. तुम सांप उठाओगे, सर्प को उठाओगे, कुछ नहीं होगा। This is the dominion I'm giving you now. ये है वो दायरा, ये है वो क्या कहते हैं अधिकार जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। But literally ruling over the earth. लेकिन वास्तविकता में पूरी पृथ्वी पे राज करना, You have to wait for that. इस काम के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। You have to wait for a time and a season. एक खास समय और मौसम के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। But you fulfill this much, लेकिन तुम इतना पूरा करो, I'll bring that also. मैं उस चीज को तीसरे पॉइंट को भी लाऊंगा। Remember, I'm showing you something. देखिए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। This third point will finish the commission. ये तीसरा पॉइंट जो है, ये कमीशन को पूरा कर देगा। I repeat my sentence. मैं अपने वाक्य को दोहराता हूं। The third point, जो तीसरा पॉइंट है, subdue it, वश में कर लो, will actually finish the commission. ये वास्तविकता में इस कमीशन को पूरा कर देगा। And remind you, the last enemy that shall be destroyed is death. और आप जानते हैं अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। It'll be destroyed later for the earth, but for the bride now in the first resurrection. पृथ्वी के लिए तो बाद में वो बर्बाद किया जाएगा, लेकिन आज दुल्हन के लिए आज वो खत्म किया जाता है। Death will be brought under feet. मृत्यु पांव के तले लाया जाएगा। And it'll be said, और कहा जाएगा, O death, where is thy sting? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? O grave, where is thy victory? हे कब्र तेरी विजय कहाँ है? In other words, have authority over death. दूसरे शब्दों में मृत्यु पे गलबा प्राप्त करना। When you have authority over death, जब मृत्यु पे आप अधिकार जमाते हैं, you got the greatest thing. आपके पास सबसे महान चीज है। Now you cannot die. अब आप मर नहीं सकते। Then you're not afraid of any battle. तब आप किसी युद्ध से फिर घबराते नहीं। Then when Armageddon comes, तो जब अब आर्मगेद्दोन आएगा and you sit on a white horse, और आप सफेद घोड़ों पे बैठेंगे, that fear of death is not in you. वो मृत्यु का डर आपके अंदर है नहीं। No missile can destroy you. God bless you my brother। कोई मिसाइल आपको बर्बाद नहीं कर सकती। But you have come with Christ, लेकिन आप मसीह के साथ आए हैं। your Adam, आपका जो आदम है and you his church, और आप जो उसकी कलीसिया हैं, that male and female which was told in Genesis. वो नर और नारी जिसको की उत्पत्ति में कहा गया। Now finally in Revelation 19, अब आखिरकार प्रकाशित वाक्य 19 में that male and female, वो नर और नारी, Adam and his bride, आदम और उसकी दुल्हन, that second Adam now, अब मैं कहूंगा दूसरा आदम and his bride, his church, और उसकी दुल्हन उसकी कलीसिया together on white horses, एक साथ श्वेत घोड़ों पे will come and fight for Israel वो आकर के इजराइल के लिए लड़ेंगे and kill the beast and his powers और पशु और उसकी सामर्थ्यों को मार के खत्म कर देंगे and subdue the earth. और पृथ्वी को वश में कर लेंगे। That is where the commission will finish. ये वो स्थान है, ये वो जगह है जहां पे ये कमीशन संपन्न होगी। Try to understand this. अब इसको समझने की कोशिश This करें। is where the commission will be finished. ये वो स्थान होगा जहां कमीशन पूरा हो जाएगा। When Christ and his bride will literally sit and rule over the earth. जब मसीह और उसकी दुल्हन वास्तविकता में बैठ करके पूरे संसार पे राज करेंगे। Now, अब are you with me till now? अब तक क्या आप क्या मेरे साथ हैं? I'll also read one more quote. मैं एक और हवाला आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। Paragraph 82. Because Bayas. I've read all these, so I'm just taking selected parts. मैं इनको पढ़ चुका हूं इसलिए मैं केवल चुने हुए हिस्से ले रहा हूं। Them kind that takes the word is God's true bride, bringing forth children. वो किस्म जो कि खुदावन के सच्चे वचन, जो खुदावन के वचन को लेती है, वो सच्ची दुल्हन है जो कि बच्चे संतान पैदा करेगी। That was the purpose of God. ये था खुदा का उद्देश्य, That she brings forth children. कि वो संतान पैदा करे। Are you with me? क्या मेरे साथ है? And now listen what he's saying. अब देखिए वो क्या कह रहे हैं यहां पर। Them kind. वो वाली किस्म, It's a special kind ये खास किस्म है that takes the word जो कि वचन को लेती है। is God's true bride. ये खुदा की सच्ची दुल्हन है। What happens when she takes that word? क्या होता है जब वो खुदा के वचन को लेती है? She brings forth children. वो बच्चे पैदा करती है। What's special about those children? अब इन बच्चों के बारे में क्या खास बात है? They can't die. वो कभी मर नहीं सकते। A child the bride brings forth on the word can't die because it's the word. एक बच्चा जो कि दुल्हन पैदा करती है वचन के द्वारा
कभी मर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो वचन है। Amen. आमीन। What is this bride doing now? अब ये दुल्हन क्या कर रही है? She's exactly fulfilling the commission. वो सटीकतापूर्ण इस कमीशन को पूरा कर रही है। How is she doing it? कैसे कर रही है? By receiving the word. वचन को ग्रहण करने के द्वारा। Somebody preaches her the word. कोई आकर के उसके वचन प्रचार करता है। She recognizes that word. वो उस वचन को पहचानती है। She receives that word. उस वचन को वो ग्रहण करती है। And she brings forth children. और वो संतान बच्चे पैदा करती है। Word children वचन वाले बच्चे who cannot die. जो कभी मर नहीं सकते। Now listen, brother. अब सुनिए मेरे भाई, You have to understand the meaning of death. आपको मृत्यु का मतलब समझना जरूरी है। We are not talking about that death where somebody dies and you bury them. हम उस मृत्यु की बात नहीं कर रहे जिसमें कोई मरता है और हम उसको गाड़ के आते हैं। That is sleeping. उसे सोना कहते हैं। That's not death. उसे मृत्यु नहीं कहते। Death means separation from God. मृत्यु का मतलब खुदा से जुदाई। Once that child is born एक दफा वो बच्चा पैदा हो जाए by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा, by that word, उस वचन के द्वारा, the anointed word for that age, वो अभिषिक्त वचन उस खास युग का, that child can never die. वो वाला संतान, वो वाला बच्चा कभी मर नहीं सकता। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? That child can never be separated from God. वो वाला बच्चा कभी भी खुदा से अलग और जुदा नहीं हो सकता। That child can go through a backslidden state, but he cannot remain there. He has to come back and be restored in the presence of God and remain in His presence forever. Eternity. वो बच्चा हो सकता है कि थोड़े समय के लिए पिछड़ जाए, लेकिन वो वापस आएगा खुदा के पास और खुदा की मौजूदगी में हमेशा बना रहेगा। They will remain. वो बने रहेंगे। He can never be separated from the presence of God. God bless you. वो कभी भी खुदा की उपस्थिति से जुदा नहीं हो सकता। You don't have to baby such a child. ऐसे बच्चे को आपको पालने की जरूरत नहीं। You don't have to give him feeds. आपको उसे फीड देने की जरूरत नहीं है। Like the hotbed plants growing in the pots. जैसे ऐसे पौधे जो कि आप पाते हैं आजकल गमलों में उगते हैं, जिनको बहुत ज्यादा पानी डालने की जरूरत पड़ती है, खाद डालने की जरूरत पड़ती है, ये स्प्रे करो, वो स्प्रे करो, ये ऐसे बच्चे नहीं हैं। I'll give you a place in the church. मैं आपको चर्च में एक जगह दूंगा बैठने के लिए। I'll give you a position. मैं आपको एक स्थान दूंगा। You'll have a name in the church. चर्च में तुम नामी हो जाओगे। Yes. जी हाँ। And I'll do this for you. And whatever a little that person does, pat, pat, pat. God bless you. Well done. जो कुछ थोड़ा भोड़ा वो कर रहा है, वो जो आदमी जो आया है उसको पीठ पे थपथपाने कहना, God bless you. God bless you. Well done. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। God bless These are you. not my word. This is what Brother Branham said. ये मेरे शब्द नहीं है, ये वो बातें हैं जो भाई ब्रैनम ने बोली। They need patting, he said. नबी ने कहा इन्हें थपथपाने की जरूरत पड़ती है। Every time somebody encourages them. हर दफा कोई जाकर के उन्हें उत्साहित करता है। I don't know why, what discourages them. मुझे मालूम नहीं क्या चीज उन्हें हतोत्साहित करती है। Every few minutes they are discouraged. हर कुछ मिनटों के बाद हतोत्साहित हो जाते हैं। Brother Branham said that's not the real child of God. भाई ब्रैनम ने कहा कि जो हकीकी खुदा की जो संतान है वो ऐसी नहीं है। The real Christian is not a hotbed plant. जो वास्तविक जो क्रिश्चियन है, वास्तविक मसीह, वो हॉटबेड प्लांट नहीं है। You're so good, sister. बहन आप बहुत अच्छी हैं। Say a few good words for that sister. उस बहन के लिए कुछ अच्छे शब्द You're so बोलते हैं। good, brother. भाई आप बहुत अच्छे हैं। Say some good words for him. कुछ भले शब्द उनके लिए बोलते हैं। अब अच्छा लग रहा है। Today he remembered me. आज उन्होंने मुझे याद किया। Today my name was spoken from the pulpit, you know. आपको मालूम आज मेरा नाम पुलपिट से लिया गया। Today I'm a famous man. आज से मैं प्रसिद्ध आदमी हो गया। Yeah. जी हाँ। And then he's given me this place. अरे मुझे ये स्थान दिया गया है। I've been given a position of importance. मुझे बहुत ही महत्ता वाली पोजीशन मिली है। If that position goes, what will happen? अगर वो पोजीशन चली जाए तो क्या होगा? He'll leave the church. वो चर्च छोड़ के चले जाएंगे। He will not remain. हम यहाँ रहेंगे नहीं। Because it hits his polish too hard. क्योंकि उसकी सभ्यता को बहुत गहरी चोट पहुंचती है। They took that place from me. अरे वो स्थान मुझसे छीन लिया। He needs a constant encouragement. उसे लगातार उत्साह चाहिए। But Branham said that's not a real Christian. भाई ब्रैनम ने कहा वास्तविक मसीह ऐसे नहीं होते। The real Christian is one you throw him anywhere. वास्तविक क्रिश्चियन ऐसा है आप उसे कहीं भी फेंक दो। But that life in him
लेकिन वो जीवन जो उसके अंदर है, it keeps on growing and growing. वो बढ़ता रहता है, उगता रहता है, उगता रहता है. He drinks from his roots and keeps on pushing. God bless you. That's what Brother Branham said. वो जड़ों से पीता रहता है और आगे धक्का देता रहता है, ऊपर धक्का देता रहता है. No matter how hot the sun is, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सूरज कितना तेज हो. no matter how heavy the rains are, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बारिश कितनी मूसलाधार हो. he is not a seasonal believer. वो मौसमी विश्वासी नहीं है. He is not living in the outer court. वो बाहरी आंगन में नहीं रह रहा. He is not living in the light of the candlesticks. वो क्षमादान की रोशनी में नहीं रह रहा. He is living in the Shekinah. वो खुदा की शकीना महिमा में रह रहा He is है. living in the holiest, brother. वो परम पवित्र स्थान में रह रहा है मेरे He भाई. has a constant dealing with God. उसके पास एक लगातार खुदावंद के साथ He is एक in dealing- constant fellowship with the Father. पिता के साथ उसकी लगातार संगति है. He can never die. वो कभी मर नहीं सकता. You don't have to encourage him. आपको उसे उत्साहित करने की जरूरत नहीं. You know, beta? You know, beta? बेटा आपको मालूम How good it's to come to the church? कितना अच्छा होता है चर्च में आना. You know it's good to attend meetings. आपको मालूम कितना अच्छा होता है मीटिंग्स अटेंड करना. You know it's so good and you should do this and do that. And after आपको 5 ऐसा- or 10 times, okay, since you're saying so much, I don't want to disappoint you. I will go to the church. और इतनी दफा कहने के बाद फिर वो कहता है क्योंकि आपने इतनी दफा कहा मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता हूं, आपके लिए मैं चर्च आ जाता हूं. Because I love you so much, so I don't want to disappoint you. क्योंकि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, मैं आपको हतोत्साहित करना नहीं चाहता, निराश नहीं करना चाहता. I'll come one Sunday. तो मैं एक संडे आ जाता हूं. But next Sunday, लेकिन अगले संडे I'm back where I am. मैं वापस वहीं पे हूं जहां मैं हूं. Because I kept your word also. हाँ, मैंने आपके वचन को भी जगह दे दी मैंने. Because you're my आपकी son. बात भी रख ली मैंने. Because you're such a good friend of mine. क्योंकि आप इतने अच्छे दोस्त हैं मेरे. When you go some places, जब आप कुछ स्थानों में जाएं, brother, now what do you feel about this water baptism? भाई अब आप क्या सोचते हैं इस पानी के बपतिस्मे के You have बारे में? heard the messages. आपने संदेशों को सुना है. Give me some time. वो बंदा क्या कह रहा है? मुझे कुछ समय दीजिए But सोचने का. I have already preached so many messages. लेकिन मैंने तो इतने सारे संदेश आपके सामने प्रचार कर दिए And I have tried to explain these things. और इन चीजों को मैंने समझाने की कोशिश करी. Now it's time for you to take a decision, brother or sister. अब भाई या बहन, आपका समय है कि आप फैसला लें. Give us some time. क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समय दीजिए. Give us some time to think. हमें सोचने का समय दीजिए. Think then फिर सोचते रहें and keep on thinking. और फिर सोचते ही रह जाएं. When I read the Bible, जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, the elect of God who are caught in the gospel net were not those who are thinkers, but the ones who were caught by that revelation and they took an immediate step. जो खुदावंद के बच्चे, जो खुदावंद के चुने हुए थे, जो कि सुसमाचार के जाल में फंसे, वो ऐसे नहीं थे जो कि सोचते रहते थे. वो ऐसे थे जिन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और खुदावंद, और वो डिसीजन कैसे लिया? मुकाशफे के तहत, और खुदावंद के राज में आ गए. And Peter said, और पतरस ने on the कहा, day of Pentecost, ईद पेंतिकुस्त के दिन, repent and be baptized in the name of Lord Jesus Christ, तो में से प्रत्येक तौबा करे और अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा and ले, you shall receive the gift of the Holy और Ghost. तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे. And they that gladly received और वे जिन्होंने बड़े खुशी के साथ ग्रहण किया, said, कहा give us some more time to wait. हमें कुछ और इंतजार का समय दिया जाए. Sorry, that's not how the Bible reads. माफ कीजिएगा, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा. Immediately on that very day, God they took bless a you. decision. तुरंत उसी दिन उसी समय उन्होंने फैसला लिया और बपतिस्मा लिया. Because their hearts were pricked. क्योंकि उनके हृदय छिद गए थे. You see, now this is God dealing. अब देखिए, ये खुदावंद की डीलिंग है. This is not a hotbed plant. ये ऐसा पौधा नहीं है जिसको स्प्रे किया जाए. Come, brother, it's so good. You come, please. आइए मेरे भाई, आइए. कितना अच्छा होता है भाई. आइए आइए आइए. कितना अच्छा लगेगा आप भी चर्च आए. मुझे तो खैर अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसा चर्च आए. मुझे नहीं अच्छा लगेगा. मुझे ऐसा अच्छा लगेगा जो अंदर से कहे मैं चर्च जाऊंगा. आमीन आमीन. अब आप कहते हैं तो ठीक है, आपका भी दिल रखने के लिए मैं चलता हूं, चलती हूं. दैट इज नॉट अ बिलीवर. अब ये विश्वासी नहीं है. That's not a believer. ये एक विश्वासी नहीं है. The prophet is saying that child can never die. नबी बता रहे कि ऐसा बच्चा कभी मर नहीं सकता. इस नबी के मैसेज को समझने के लिए आपको एक भाषा सीखनी पड़ेगी. जब कह रहे हैं ऐसा बच्चा कभी मरेगा नहीं, तो यहां परिभाषा समझो मौत की. पहले हाँ जी. मरने का मतलब वो नहीं है कि वो मर गया.
हार्ट अटैक से या कैंसर से या किसी और बीमारी से, ये वो वाली मौत नहीं है, वो तो सोना है। मरने का मतलब है खुदा से वो अब कभी जुदा नहीं हो सकता। He can never be separated from the presence of God. खुदा की मौजूदगी से कभी जुदा नहीं हो सकता। You put him alone on the North Pole. आप उसे उत्तरी ध्रुव में अकेला छोड़ दें, You put him alone on Antarctica. अंटार्कटिका में उसको अकेला छोड़ दें, He'll still be with God. वो फिर भी खुदा के साथ बना You रहेगा। don't have to teach him fellowship. आपको उसे संगति सिखाने की जरूरत नहीं। God will provide him that fellowship. खुदावंद उसको मुहैया करेंगे वो संगति। You don't have to pat him on the back, brother. आपको उसको जाके पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं। Even if you neglect him, यहाँ तक कि आप उसको अगर निगलेक्ट भी कर दें, छोड़ दें, you leave him for some time. कुछ समय के लिए छोड़ दें, Leave that person to himself. उस बंदे को अपने में छोड़ दें, अब उसे बात भी ना करें. हाँ जी। He'll never be defeated. वो कभी भी हार नहीं सकता। जब अगली बार you go to meet that brother, अगली दफा जब आप जाएंगे उस भाई से मिलने, grown up from here, यहाँ से बढ़ के यहाँ से यहाँ from faith to virtue to knowledge to temperance to patience to godliness, brotherly kindness, charity. विश्वास, सद्गुण, ज्ञान, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति में बढ़ता चला गया। ब्रदर आओ आओ। इससे याद आया, हमारी नानी गाजियाबाद में, पुरानी बात है बहुत, और हमारी फुप्पो एटा में शाम को आवाज लगा देती, आ आ आ। मुर्गियां जाती थी, मुर्गियां बुलाती थी, आ आ आ आ। फिर वो आ जब बोलती थी तो सारी मुर्गियां फिर आ जाती थी, फिर उन्हें दड़बे में डाल देती थी। तो ये आ आ आ की आवाज एक बार आती है, एक बार तो आती है, खुदावन की आवाज आती है, मेरे बेटे आ जा। एक बार वो आ जाता है तो बार बार आ आ आ करने की जरूरत नहीं पड़ती। Getting the point? बात समझ में आ रही है? Just to make you understand. आपको समझाने के लिए कहा मैंने। It's not a hotbed plant. ये ऐसा पौधा नहीं जिसको स्प्रे किया जाए। That child can never die. वो बच्चा कभी मर नहीं सकता। He's in constant fellowship with God. खुदा के साथ लगातार संगति में है। He's not a hypocrite. He's not a liar. His nature is changing. वो पाखंडी नहीं है, वो झूठा नहीं, उसका स्वभाव बदल रहा है। He's changing from glory to glory. महिमा से महिमा में वो बदलता जा रहा है। Are you catching the message? क्या संदेश पकड़ रहे हैं आप? Now that was the kind of children Eve should have brought forth, which she couldn't. But now from the day of Pentecost, it began. अब इस प्रकार की जो संतान है वो हव्वा को लाना था उत्पत्ति में, लेकिन वो ला नहीं पाई, लेकिन ऐसा बच्चे पैदा हुए पेंतिकोस्त के दिन। Now I'll go further in this message because I've just put a background before you. मैंने केवल आपके सामने एक भूमिका को रखा है। Now there are 3 brides. अब 3 दुल्हनें हैं। One is Adam's bride. This pen in fact is not working at all. So I'll put it here somewhere. I'll pick up this one. Yes. Yes. Adam's bride. आदम की दुल्हन। 3 brides. 3 दुल्हनें हैं। Jehovah's bride. यहोवा की दुल्हन and Christ's bride. और मसीह की दुल्हन। This one was in Eden. आदम की दुल्हन अदन में थी। Jehovah's bride was Israel when it came out of Egypt. और यहोवा की दुल्हन इज़राइल थी जब वो मिस्र देश से बाहर निकल के आई। And Christ's bride was the church which started at Pentecost. और मसीह की दुल्हन वो कलीसिया थी जो कि ईद पेंतेकोस्त के दिन चालू हुई। And these are the statements of the prophet. और नबी के ये वाक्य है। All the 3 committed adultery, fornication, whatever. और इन 3 नबी ने बताया इन तीनों ने जिना किया, विचार किया। Yes. All the 3 became the category of whores. तीनों उस श्रेणी में पहुंच गए जिसे कहते हैं वेश्या। All the 3 committed the same mistake. इन तीनों ने वो ही गलती करी। Let's see that mistake. आइए उस गलती को देखें। Let's highlight that mistake today. आइए उजागर करें उस गलती को। They couldn't wait for a particular season. We'll speak more on it today now. आज ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे। ये तीनों जो थे उस खास मौसम के लिए इंतजार नहीं कर पाए। Are you understanding, brother? क्या समझ रहे मेरे भाई And you sisters? और मेरी बहनों? Can you understand that? Yes. क्या समझ पा रहे हैं? They couldn't wait for that particular season to arrive. उस खास मौसम के आने का वो इंतजार कर नहीं पाए। Now we'll speak a little more about that season. अब हम थोड़ा ज्यादा इस मौसम के बारे में बात करेंगे। Are you with me till now? क्या अब तक क्या आप मेरे साथ हैं?
try to understand this season now. अब इस मौसम को समझने की कोशिश करें. Before you understand the season, इससे पहले कि हम मौसम को today समझें, I'm not reading, but I've read it, so I'm just preaching to you some things. You can read it at home. आज मैं पढ़ नहीं रहा हूं, हमने पढ़ा है. मैं केवल आपके सामने चीजें प्रचार कर रहा हूं ताकि आप घर जाके पढ़ सकें. Listen now. आप सुनिए. He gave this commission. खुदावंद ने इस कमीशन को दिया. Now the next point. अब अगला पॉइंट, How to carry it out. इसको पूरा कैसे करें. Okay. ठीक है, Let me say it like this. आइए मैं इस प्रकार से कहता हूं. Let's go back. आइए वापस चले. What if Adam and Eve would have waited? क्या होता अगर आदम और हव्वा इंतजार कर पाते. If Adam would have spoken अगर आदम बोलता and Eve would have conceived, और हव्वा गर्भ धारण करती, a child would be born. तो एक बच्चा पैदा होता. Amen. आमीन. But the next question, लेकिन अगला सवाल, they had to name that child. उन्हें उस बच्चे का नाम रखना था. Every child receives a name. हर एक बच्चा जो पैदा होता है उसका नामकरण होता है. Now, what should the name of this child be? अब इस खास बच्चे का क्या नाम होगा. That was not revealed yet. ये अब तक के प्रकट नहीं हुआ था. Now, the names of those children who were to be born were actually placed in a book. वो बच्चे जिन्हें पैदा होना था उनके नाम वास्तविकता में एक किताब में रखे गए थे. Now, अब this is something not written there, अब ये कुछ ऐसी चीज है जो यहां लिखी नहीं है. and that's why this messenger came और यही कारण है कि यह संदेश वाहक आया to reveal what was not written. ताकि प्रकट करे उसको जो लिखा नहीं था. Listen carefully. ध्यान से सुनिए. In order to fulfill this commission, इस कमीशन को पूरा करने के लिए God to fulfill the commission, इस कमीशन को पूरा करने के लिए God gave them the book. खुदावन ने उनको किताब दी थी. Eve didn't have it, हव्वा के पास नहीं थी किताब, Adam had it. आदम के पास थी. Because it was Adam who would have finally spoken that mystery. क्योंकि आखिरकार ये आदम होता जो कि उस भेद को बोलता. Eve should have listened to it. हव्वा को इसको सुनना होता. Oh yes. I hope you're understanding it. मैं सोच रहा हूं कि आप समझ रहे हैं. Now, brother, from where are you saying these things? भाई आप ये कहां से कह रहे हैं. When you read the message breach, जब आप फासला वाला संदेश पढ़े, I'm going slowly so that everybody can understand. May God give grace. मैं धीमे धीमे चल रहा हूं ताकि हर एक कोई समझे. खुदावंद का अनुग्रह प्रदान करे. The prophet goes to Revelation 5 when he's reading this book sealed with 7 seals. जब नबी इस किताब के बारे में पढ़ रहे जो कि 7 मोहर लगा के बंद की गई थी, वो प्रकाशित वाक्य 5 में जाते हैं. And he tries to explain. और वो समझाने की कोशिश करते And हैं. I saw in the right hand of him that sat a book और जो सिंहासन में बैठा उसके दाने हाथ में किताब थी, sealed with 7 seals. 7 मोहर लगा के जो बंद की हुई Is that थी. right? क्या बात सही है? Then what did Brother Branham say about that book? तो भाई ब्रैनम ने उस किताब के बारे में क्या कहा? Because we have preached again and again, so I'll just say it and you can understand it. क्योंकि हमने इसको बार-बार प्रचार किया, मैं केवल बोलूंगा ताकि आप इसे सुने. That book was the title deed of the entire earth. ये जो किताब थी, ये दस्तावेज थी पूरी पृथ्वी की. And when it was a title deed to the entire earth, और जब ये एक दस्तावेज था पूरी पृथ्वी का, let me read that lines for you. आइए मैं उन पंक्तियों को आपके लिए पढ़ता हूं. May God give me grace. काश खुदा मुझे अनुग्रह प्रदान करे. I'm reading from para 99 of Breach. फासले वाले संदेश के मैं 99वें अनुच्छेद से पढ़ रहा हूं. Now when Adam sinned, जब आदम ने गुनाह किया, by hearing his wife's reasoning, अपनी पत्नी की तर्क वितर्क सुनने के द्वारा, instead of holding to God's word, जबकि होना तो यह चाहिए था कि वो खुदावन के वचन को थामे रहता. that's what made Adam sin. इस चीज ने आदम को गुनहगार ठहराया. His wife reasoned with Satan उसकी पत्नी ने तर्क वितर्क किया शैतान के साथ, and then produced the product to Adam. और फिर उस उत्पाद को आदम के सामने दिया. And Adam turned loose the word and sold out. और फिर आदम ने वचन को छोड़ दिया और उसे बेच दिया. आदम ने किस वचन को छोड़ दिया?
The line was written there. Turn loose the word. उसने वचन को छोड़ दिया. Which word? कौन सा वचन? This commission. हाँ जी, ये कमीशन, इसको छोड़ दिया. He turned loose the word. उसने वचन को छोड़ दिया. And I'm reading further for you. आगे पढ़ रहा हूं आपके लिए. और And sold out. और उसे बेच डाला. क्या बेच दिया? अपने अधिकार. हाँ जी. Now see paragraph 100. 100 अनुच्छेद देखिए. क्या हुआ जब उसने इस वचन को छोड़ दिया? He lost. क्या खोया उसने? He lost also his inheritance. उसने अपनी मीरास को भी खो दिया. When he lost his fellowship. जब उसने अपनी संगति को खोया. किसके साथ? बस ये सब कहना बड़ा आसान है, खुदा के साथ. थोड़ा और गहराई में जवाब दो. मैं यार एक ऐसे चर्च को प्रचार कर रहा हूं जो 20 साल से मैसेज सुन रहा है. तो मुझे सही जवाब दो. कौन से खुदा के साथ? मुझे आज शाम स्पेसिफाई करो. खुदा से संगति छोड़ दी, कौन से खुदा के साथ? Let me repeat it for you. With that God, उस खुदा के साथ who used to come as a voice, जो कि एक आवाज की तरह आते थे in the cool of the day, दिन के ठंडे समय, and fellowship with them, और उनके साथ आके संगति करते थे. he lost that fellowship with Logos. उसने अपनी संगति को लोगोस के साथ खो दिया. अब ये मत बोलिए खुदा से संगति खोली. अब ये थोड़ा आगे बढ़िए थोड़ा सा. किस खुदा से संगति छोड़ दी, खो दी? किस रूप में खुदा आते थे? खुदा तो आत्मा है, आमीन. लेकिन वो रूप क्या था खुदा का जो आदम से संगति करता था? इट वॉज द लोगोस. वो लोगोस था. He lost fellowship with that logos. उसने इस लोगोस के साथ संगति को खो दिया. God bless you. Who was that logos? वो लोगोस कौन था? The theophany of God. खुदा की थियोफनी. He lost his contact with that theophany. Oh my. उसने उस थियोफनी के साथ संपर्क को खो दिया. And now you have to understand. और अब आपको समझना पड़ेगा. Under redemption, छुटकारे के नीचे that theophany would come back to fellowship with his child. वो थियोफनी वापस लौट के आएगा ताकि अपने बच्चे के साथ संगति करे. In the Old Testament, पुराने ऐतनामे में under shadows, not reality, but shadows. छायाओं के नीचे, मैं कहूंगा हकीकत नहीं, छायाओं के नीचे. Because Exodus is a book of redemption. क्योंकि निर्गमन जो है वो छुटकारे की किताब है. It's the first part of redemption. ये छुटकारे का पहला हिस्सा है. Calling out. बाहर बुलाना. And Joshua is taking them in. और यहोशू उनको अंदर लेके जा रहा है. Exodus is the book of redemption. तो जो निर्गमन है वो छुटकारे की किताब है. It dealt with the blood. उसका संबंध एक लहू के साथ था. It dealt with the waters from the rock. उसका संबंध था पानी से जो कि चट्टान से निकला. Which was smitten. जो कि पीटा गया था. It dealt with a lamb which was killed. उसका संबंध था एक मेमने से जो मारा गया. Notice Moses under the blood of bulls and goats. ध्यान से देखिए, मूसा जो है बैलों बकरों के लहू के नीचे. That's all he knew. इतना ही वो जानता था. What happened? क्या हुआ? That theophany came back for some fellowship. वो थियोफनी वापस लौट के आई कुछ संगति के लिए. And a little fellowship freed a nation from a nation. और आप देखिए इस थोड़ी संगति ने एक राष्ट्र को एक दूसरे राष्ट्र की गिरफ्त से छुड़ा करके आजाद कर दिया. That fellowship which was lost, वो संगति जो कि खो गई थी for a brief time, थोड़े समय के लिए was brought to a man. एक आदमी के पास लाई गई. Because he is a type of redemption. क्योंकि वो छुटकारे की तस्वीर है. He is the messenger of the first Exodus. पहले निकासी का वो दूत है. And when that theophany came और जब वो थियोफनी आई and fellowship with his prophet, और इस नबी के साथ संगति करी, he became a god. वो खुदा बन गया. He became a god for his age. अपने युग के लिए वो खुदा बन गया. He became the skin. वो खाल बन गया. He became the veil वो बन गया वो खाल. behind which God was veiled. वो बन गया वो पर्दा जिसके पीछे खुदावन आ गए. God was foreshadowing. खुदावन दिखा रहे थे पूर्व छाया में. This was what was lost in Eden. ये थी वो चीज जो कि अदन में खो दी गई थी. And this is only just a type. और ये मात्र तस्वीर है. But when I really bring my theophany, God bless you.
लेकिन जब मैं वास्तविकता में अपनी थियोफनी लाऊंगा in the New Testament, नए नामे में, not under the blood of bulls and goats, बैलों बकरों के लहू के नीचे नहीं, but under the blood of Jesus. लेकिन यीशु मसीह का खून के नीचे, When the theophany came to Paul, जब वो थियोफनी पौलुस के पास आया, it opened the door to the Gentiles. उसने अन्य जातियों के लिए द्वार खोल दिया. That's where the message spread to the Gentiles. ये वो जगह है जहां पर संदेश अन्य जातियों तक फैल गया. And after 2000 years, और 2000 सालों के बाद, when the theophany returned back जब वो थियोफनी वापस लौट के आई, to fellowship with another man, एक और आदमी के साथ संगति करने के Brother लिए, William Branham, भाई विलियम ब्रैनम, you know what happened in his life. आप जानते हैं उनके जीवन में क्या हुआ. And mind you, this time when the theophany has come, और ध्यान रखें, इस दफा जब थियोफनी आई, he has not just come to have fellowship, वो केवल संगति के लिए नहीं आई, he came for a marriage, वो एक शादी के लिए आई, he came for a commission, वो आया एक कमीशन के लिए, he came for the fulfillment. वो आया पूर्तिकरण के लिए. When it will be finished, जब यह पूरा हो जाएगा, some people will fly, कुछ लोग उड़ जाएंगे, some people cannot remain, कुछ लोग यहाँ टिके नहीं रहेंगे, some people will be called gods. कुछ लोग होंगे जिन्हें खुदा कहा जाएगा. They'll be the very image of God on this earth. वो पृथ्वी में खुदावन के वास्तविक Oh स्वरूप. God, I pray, ओ मेरी दुआ है खुदावन से, let it happen, Lord. ओ प्रभु काश यह हो Let it जाए, happen once more. एक दफा और ये हो जाए. Amen and amen. आमीन और आमीन. That's the prayer of our hearts. ये हमारे हृदय की दुआ है. I want to show you, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, he lost his fellowship with God. उसने अपनी संगति को खुदा से खो दिया. ओ मां. Unquote. Unquote. Unquote का मतलब अब मैं एक टिप्पणी दे रहा हूं. अब मैं टिप्पणी दे रहा हूं. In other words, दूसरे शब्दों में, the blood of Jesus will restore that fellowship. प्रभु यीशु मसीह का खून उस संगति को वापस बहाल करेगा. When theophany will fellowship with man. Notice, for a brief time, थोड़े समय के लिए ध्यान दीजिए, that same theophany came to Abraham वही थियोफनी इब्राहिम के पास आई, as Melchizedek. मलकीसेदक के रूप में. What happened few chapters later? कुछ अध्यायों के बाद क्या हुआ, He and Sarah became young. और सारा जवान हो गए. You see, that theophany had a power of changing. आप देखिए, उस थियोफनी के पास सामर्थ्य बदलने की. And God was foreshadowing through Moses, through Abraham, through the prophets, what he's going to do on a large scale in his people under the blood of Jesus. और प्रभु यीशु खुदावन जो है, इसको केवल पूर्व छाया में, इब्राहिम में और मूसा में और नबियों में होकर दिखाई दे, जो कि बड़े रूप में अपने बच्चों के साथ करेंगे. When the theophany fellowship was broken, जब वो थियोफनी वाली फेलोशिप टूट गई, on the day of Pentecost, Brother Nishal, ईद पेंतेकोस्त के दिन भाई निश्चल, that theophany came down वो थियोफनी नीचे उतर के आई and divided as tongues और जीवों में बढ़ गई and came over 120. और 120 के ऊपर आ गई. Did it? क्या हुआ ऐसा? What happened as a result? इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? A church was born एक कलीसिया पैदा हो गई to fulfill that commission. ताकि उस कमीशन को पूरा करे. You see, that point doesn't die out. That point remains. आप देखिए, कमीशन वाला पॉइंट मरता नहीं, बना रहता है. God had one thing in mind to finish that commission. खुदावन के पास केवल एक ही चीज है विचार में, कि यह कमीशन पूरी हो. Fruitful, फूलो फलो, multiply, बढ़ जाओ, replenish the earth, पृथ्वी में फैल जाओ, have authority. और अधिकार जमाओ. I want to see my family ruling over this earth. मैं देखना चाहता हूं कि मेरा परिवार पृथ्वी पर राज कर रहा हो. That's the purpose of my commission. यह मेरी कमीशन का उद्देश्य है. And to fulfill that, और इसको पूरा करने के लिए he gave this title deed. उसने ये दस्तावेज. Let me read out for you. आइए मैं इसको आपके लिए पढ़ता हूं. There is some portions. We'll continue maybe next week. कुछ हिस्से जो कि हम अगले हफ्ते शायद कंटिन्यू करेंगे. He lost. What did he lose? He उसने lost also his inheritance. उसने खो दिया. क्या खोया? अपनी मीरास को. When he lost his fellowship and right to life. जब उसने अपनी संगति को खोया और जीवन के अधिकार को. What was this right to life? ये जीवन का अधिकार क्या था? To reproduce. पैदा करना. To reproduce another after God's kind. पैदा करना एक और खुदा की किस्म के अनुसार. He lost that right. उसने इस वाले अधिकार को खो दिया. And further down he says, और आगे वो कह रहे हैं, when he lost that inheritance, जब उसने इस मिरास को खोया, and when he lost his life, और जब उसने अपने जीवन को खोया, he also lost his inheritance in life. तो जीवन में भी उसने इस मिरास को खो दिया. In other words, he lost the inheritance, which was the earth.
दूसरे शब्दों में वो मिराज जो कि पृथ्वी थी उसको भी उसने खो दिया। Now he's losing two things. अब दो चीजें खो रहा है। He's losing the power of reproduction. वो प्रजनन के सामर्थ को खो रहा है। सेक्स के द्वारा की बात ही नहीं हो रही है ब्रदर। हाँ जी, सेक्स के द्वारा तो उसने 100 बच्चे पैदा कर लिए हों, लेकिन वो वाली पैदाइश जो उसके बगैर सेक्स के होनी थी उसका एक भी नहीं हो पाया। यह अधिकार वो खो बैठा। He lost that. उसने इसको खो दिया। When God said be fruitful and multiply, it was not by sex. जब खुदा ने बोला फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ, तो ये सेक्स के द्वारा नहीं था। नहीं, आदम के शेत हुआ, आदम के और भी बच्चे हुए, बेटियां हुई हैं, बाइबल में लिखा है। तो उसने क्या फूला फला नहीं? क्या वो फूला फला नहीं? खुदा की निगाहों में नहीं। खुदा की निगाहों में नहीं। इसे फूलना फलना खुदा ने नहीं बोला था। खुदा को ऐसे बच्चे चाहिए ही नहीं थे। खुदा को ऐसे बच्चे चाहिए ही नहीं थे। खुदा को वो बच्चा चाहिए था जो मुंह के बोले गए वचन से पैदा हो। वो एक भी नहीं हो पाया। ये अधिकार आदम और हव्वा ने खो दिया। तो दे कुडंट ब्रिंग दिस पार्ट ऑफ कमीशन। वो कमीशन के इस वाले हिस्से को पूरा नहीं कर पाए। एंड देन द प्रॉफिट सेज, और तब नबी कहते हैं, व्हेन ही लॉस्ट दैट लाइफ, जब उसने इस जीवन को खोया, he lost his inheritance on this earth. तो पृथ्वी पर जो मिराज थी उसको भी उसने खो दिया। क्या मिराज खो दी? अब अगली लाइन सुनिए। Because he had completely supreme control of the earth. क्योंकि उस समय, इससे पहले की गुनाह है, उस समय आदम का पूरा सर्वोच्च अधिकार इस पृथ्वी के ऊपर था। He had this earth in authority. ये पृथ्वी उसके He had authority. उस पृथ्वी उसके वश में थी। Further down, Brother Branham says, आगे नबी कहते हैं, now Adam could say, let this mountain here be moved. आदम कह सकता है पहाड़ यहां से सरक के वहां चला Let जाए। this tree here be plucked up. Yes, ये ऐसा हो कि ये जो वृक्ष है यहां से उखड़ के वहां चला जाए। And they had to obey. और उसको आज्ञा का पालन करना था। Because he had this with him. क्योंकि ये अधिकार उसके पास था। What happened then? फिर क्या हुआ? When sin came, जब गुनाह आया, he lost this उसने ऊपर वाले हिस्से को खो दिया, and he lost this. और फिर नीचे वाले हिस्से को भी खो And when दिया। he lost these both, और जब इन दोनों को खो दिया, these rights which Adam was given, of course with Eve, were actually written in this title deed. और ये अधिकार जो कि आदम ने हव्वा के साथ खो दिया, वास्तविकता में ये अधिकार और ये कमीशन जो था, ये इस पुस्तक में लिखा था। इस कमीशन को पूरा करने का अधिकार ब्रदर इस किताब में लिखा था। Because he had the book, हाँ जी, क्योंकि उसके पास किताब थी, a season would come, एक मौसम आता, that book would open, वो किताब खुलती, and a name would have been spoken, और एक नाम बोला जाता, and he would speak that mystery, और वो उस भेद को बोलता, and that child would be born. और वो बच्चा पैदा होता। This is deep, I know, ये गहरी बात है, मैं जानता हूं, but let me preach it. लेकिन मैं इसको प्रचार करता हूं। Further down, Brother Branham says, आगे नीचे भाई ब्रैनम कहते हैं, para 116 breach. ब्रीच के 116 अनुच्छेद में, Now, oh my, अब ओ माय, now the forfeited title deed. अब ये जो Forfeited means खोई हुई दस्तावेज is now in the hands of the original owner, Almighty God. अब ये खोई हुई जो दस्तावेज है, ये अब उस मूल ओनर यानी कि सर्वशक्तिमान खुदा के हाथ में है। When John saw heaven, जब यूहन्ना ने स्वर्ग देखा, one sitting on the throne, एक सिंहासन पर बैठा है, and in his right hand is that book. और उसके दाहिने हाथ में वो किताब है। Now he's trying to explain what book is he having. अब वो समझाने की कोशिश करे कौन सी किताब है उसके हाथ में। This book actually was with Adam, ये वाली किताब वास्तविकता में आदम के हाथ में थी, but he lost it because of sin. लेकिन गुनाह की वजह से उसने इसको खो दिया। So that book returned back to the original owner, God. तो ये जो किताब है वास्तविक उस मूल ओनर यानी कि सर्वशक्तिमान खुदा के हाथ में पहुंच गई। Are you able to understand this much? क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? God bless you if you can. खुदा बड़ी बरकत दे अगर कर पा रहे हैं। The title deed to the earth पृथ्वी का जो दस्तावेज था and to eternal life. और अनंत जीवन का, When Adam forfeited it, जब आदम ने इसे खोया, then Satan's dirty hands could not take it. तो शैतान के गंदे हाथ उसको ले नहीं सकते थे। Praise the Lord. खुदा का धन्यवाद हो। So it went back to its original owner. वापस अपने मूल ओनर के पास चली गई। Satan could take this earth.
शैतान पृथ्वी को तो कब्जे में ले सकता था, to make a Satan season out of it ताकि इससे एक शैतान अपनी अदन वाटिका बना दे on this earth. इस पृथ्वी पे। But that real rights which were written in the book, लेकिन वास्तविक अधिकार जो कि उस किताब में लिखे थे, he couldn't catch hold of that book. वो उस किताब को अपने हाथ में नहीं ले पाया। The book went back to God. वो किताब वापस खुदा के पास चली गई। Is that much clear to you? क्या इतनी बात स्पष्ट है? Now you'll understand. अब आप समझेंगे। To fulfill this commission, इस कमीशन को पूरा करने के लिए, in other words, Adam had this book, दूसरे शब्दों में आदम के पास ये किताब थी, but he forfeited it. लेकिन उसने इसको खो दिया। He lost the book. किताब खो दी उसने, He lost the title deed. दस्तावेज को खो दिया उसने। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। आप If he would have had the book, अगर उसके पास किताब होती the commission would have begun, तो कमीशन चालू हो जाती, but it could not. लेकिन ये हो नहीं पाया। I'll now read a quote to you. अब मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूंगा, Listen to it carefully. ध्यान से इसे सुनिएगा। I'm reading from Invisible Union 965, अदृश्य मिलाप वाले संदेश से पढ़ रहा हूं, जो 1965 का है, para 279, brother. 279। Just 1 minute, please. एक मिनट कृपया। Are you able to understand till now? ये अब तक क्या आप समझ पा रहे हैं? Now see the line the prophet is saying here. आप ध्यान से देखिए इस पंक्ति को जो नबी कह रहे हैं। We all know हम सब जानते हैं that the modern church, कि जो आधुनिक कलीसिया है, who is church? कलीसिया कौन है? The woman. वो स्त्री। The modern church, in its present condition आधुनिक कलीसिया अपनी वर्तमान स्थिति में and its present state, और अपने वर्तमान अवस्था में is in no condition to finish up the Great Commission. वो अभी इस कंडीशन में, इस हालात, इस परिस्थिति में नहीं है कि वो खुदावन की महान कमीशन को पूरा कर सके। Which commission? कौन सी कमीशन? जाहिर सी बात है, दिमाग मत्ती 28 पे जाता है, मरको 16 पे जाता है। तभी मैंने इस पॉइंट को पहले क्लियर किया God bless you, my brother. कि मत्ती 28 और मरको 16 से पहले उत्पत्ति में बोला जा चुका था। Amen. And he's saying the modern church today is in no condition to finish this commission. और नबी कह रहे हैं कि जो आधुनिक कलीसिया किसी भी हालत में नहीं है कि इस महान कमीशन को पूरा कर सके। You know the next line? आप जानते हैं अगली लाइन? कि हर लाइन का मतलब है, मीटिंग में तब नबी पूछते हैं, how many Pentecostal can say amen? नबी मीटिंग में कहते हैं कितने पेंटिकॉस्टल हैं जो यहां बैठे हैं वो आमीन कह सकते हैं। कि ये बात मैं मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पेंटिकॉस्टल्स की, यस, जिन्होंने दावा दिया कि हमें पवित्र आत्मा मिला। He said they are not in any condition to fulfill that commission. वो कह रहे वो किसी भी हालत में नहीं है कि इस कमीशन को पूरा कर सकें। Then Brother Branham, who will do it? अब भाई ब्रैनम कौन करेगा इसको? And how will it be finished? और ये कैसे पूरा होगा? In that same message, इसी संदेश में आगे I am reading, मैं पढ़ रहा हूं, listen to it carefully. इसे ध्यान से सुनिए। I am now jumping to para 300. अब मैं 300 अनुच्छेद पे जंप करके जा रहा हूं। If the modern church is in no condition to finish the commission, अगर आधुनिक कलीसिया इस परिस्थिति, इस हालत में नहीं है कि इस महान कमीशन को पूरा कर सके, how will it be? तो ये फिर पूरा कैसे होगा? How will Genesis 1:28 be finally fulfilled? तो उत्पत्ति 1:28 वास्तविकता में उसका पूर्तिकरण कैसे होगा? I'm reading para 300. मैं 300 अनुच्छेद पढ़ रहा हूं। Now we are closing अब हम बंद कर रहे in हैं saying this. इस बात को कहते हुए, Finish up the Great Commission. महान कमीशन को पूरा करते हुए। अब बात कर रहे हैं denominations की. How could they do it? अब वो कैसे कर सकते हैं? We know they are dead. हम जानते हैं मरे हुए हैं। God let it die खुदा ने उन्हें मरने दिया in this scientific age. इस वैज्ञानिक युग में। All of it. So, why did he let them die? उसने उनको मरने क्यों दिया? All of it. उस सबको, So, he could do what? ताकि वो क्या कर सके? Open up the 7 seal mystery to the undenominational bride. ताकि वो इस 7 मोहर के भेद को बाहर निकली हुई, डिनोमिनेशन से बाहर निकली हुई दुल्हन पे जाहिर करे। अरे वो मोहरे क्यों खोल रहा है डिनोमिनेशन से निकली हुई दुल्हन पे? What is the background? इस कमीशन को पूरा करना To finish the commission. ताकि कमीशन को पूरा करे। Amen, amen. God bless you, my brother. What a wonderful message. Yes. I don't know, फिर भी पता नहीं कितनों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। It's a huge point. ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है।
But it's my prayer that may God make you understand. लेकिन ये मेरी दुआ है काश खुदा न आपको समझाएं. You see, इसके लिए you have to be with the message. Yes. इसके लिए आपको लगातार संदेश में बने रहना है. How will that commission be finished then, Brother Branham? तो भाई ब्रैनम ये कमीशन पूरी कैसे होगी? He opened up the seven seal mystery to the undenominational bride. उसने 7 मोहरों का भेद खोला. एक अनडिनोमिनेशन जो डिनोमिनेशन से बाहर निकली हुई है दुल्हन उसके ऊपर. Why is he opening the book to a bride? दुल्हन के सामने पुस्तक क्यों खोल रहे हैं? What Adam's bride, Jehovah's bride, Christ's bride could not do. जो आदम की दुल्हन, यहोवा की दुल्हन, मसीह की दुल्हन पूरा नहीं कर पाए, You will do. आप करोगे. Woo, it's huge. ये बहुत बड़ी बात है. It's huge. ये बहुत बड़ी बात है. I don't know how many understand this. मैं नहीं जानता कितने समझ रहे हैं इस बात को. You should become a rocket and fly out, brother. आपको तो बड़ी जोर से चिल्लाना चाहिए और कूदना चाहिए इस बात पे. तो If this truth is really settled down in your heart tonight, अगर आज रात ये सत्य आपके हृदय में वास्तविकता में बैठ जाए, then God has chosen some people in the last days कि खुदावन ने कुछ लोगों को आज इस अंतिम दिन में चुना है and opened these 7 seals और इन 7 मोहरों को खोला है to an undenominational bride. डिनोमिनेशन से बाहर निकली हुई दुल्हन के ऊपर. What's the reason? कारण क्या है? Finish the commission. कि इस कमीशन को पूरा करें. Why? क्यों? Now go back to Eden. अब वापस लौटे आदम पे. It was exactly this book which was given to Adam to finish the commission. ये वास्तविकता में यही वो किताब थी जो कि आदम के हाथ में दी गई थी ताकि इस कमीशन को पूरा करे. But he could not. लेकिन वो कर नहीं पाया. Now opened in the last days अब खोली गई इन अंतिम दिनों में to finish the commission. ताकि कमीशन पूरा हो सके. And what is the commission? और कमीशन क्या है? Be fruitful, फूलो फलो, multiply, बढ़ जाओ, bring spoken word children, मुंह से बोले गए वचन वाले बच्चे लाओ, let them spread in the earth वो पृथ्वी में फैल जाए and भाई, subdue it. और इसको अपने वश में कर लो. Let Mark 11 become your inheritance. ऐसा हो कि मरकुस 11 आपका मीरास बन जाए. May you be an anointed child, काश आप अभिषिक्त बच्चे बने, a blood purchased seed gene child, एक लहू के द्वारा खड़े हुए खरीदे हुए जीन वचन वाले बच्चे whose name was in the book, जिनका नाम किताब में था, who was born from the book. जो किताब से पैदा हुआ. Now sit down. अब बैठ जाइए. माय 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 माय, This is huge. ये बहुत ही विशाल है. This is very, very huge. ये बहुत ज्यादा विशाल है. माय, How can a denomination accept those 7 seals? एक डिनोमिनेशन कैसे उस 7 मोहरों को ग्रहण कर सकता है? यही तो कहा नबी ने, उनके बस का नहीं है यस. ये कमीशन पूरी करना, उनके लिए है ही नहीं, वो मादा ही नहीं है. When it's absolutely contrary, जब उनकी शिक्षा के विरोध में बोलती है 7 seals, Yes. serpent seed and all those other things, सर्ववंश और ये तमाम बातें, the whole full 7 mysteries वो तमाम पूरे संपूर्ण 7 भेद is contrary to what they've been taught, वो बिल्कुल विरोध में उस बात के जो कि उन्हें सिखाया गया. because they took the old school from their Bible school. क्योंकि उन्होंने उस पुराने विचार को लिया जो कि उस बाइबल स्कूल में था, जो कि थियोलॉजी के कॉलेज में सिखाया गया. yes. And the 7 seals of God, और खुदा की 7 मोहरें when it was opened there on the mountain, जब वहां पहाड़ पे खोली गई, let God know, let me die खुदावंद right चाहता now है this pulpit with that I am the truth. अगर ये सच्ची नहीं है, नबी कह रहे, मैं कसम नहीं खा रहे, कह रहे हैं कि मैं मर जाऊं उस पुलपिट पे, अगर ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं सच्ची ना हो. yes. And I foretold you a year and 6 months before it happened. और मैंने आपको पहले 1.5 साल पहले, इससे पहले वो घटे, मैंने आपको बताया What he told me, जो उसने मुझे कहा था, go to Arizona, एरिज़ोना जाना, and what would happen out there in the desert, और वहां पर रेगिस्तान में क्या होगा, and there's men sitting right here, और यहाँ पर वो पुरुष बैठे हैं ठीक Tonight, है, आज रात was standing right there वो ठीक वहां खड़े थे, and present when the 7 angels come down. और वो मौजूद थे वहां जब वो 7 दूत नीचे उतर के Now आए. you know the purpose of the 7 angels, अब आपको मालूम है उद्देश्य 7 दूतों का, to open the book. कि किताब को खोले, Purpose, मकसद finish the commission, कमीशन को पूरा करना, to finish Genesis 1:28. उत्पत्ति 1:28 को पूरा करना. God bless you my brother, love you my brother. Hallelujah.
I jump to para 303. मैं 303 अनुच्छेद पे जाता हूं। God had to open up those 7 seals, खुदावन को उन 7 मोहरों को खोलना था, not in a denomination. एक डिनोमिनेशन में नहीं। I've always been against it. मैं हमेशा इन संस्थाओं के विरोध में रहा But हूं, out of the denomination, लेकिन संस्था से बाहर he might take a bride, वो एक दुल्हन को लेंगे, not a denominational bride. एक संस्था का दुल्हन नहीं, He couldn't do it. वो नहीं कर It's सकता। against his own word. ये उसके अपने वचन के खिलाफ होगा। He opened those 7 mysteries in there वहां पर उसने उन 7 भेदों को खोला, that shows forth, जो दिखाते हैं, brings दर्शाते हैं, forth those things उन चीजों को लेके आते हैं that's been hid since the foundation of the world, जो कि बिना इल्म से पेशतर छुपे हुए थे, might be revealed in the last days जो कि शायद प्रकट होंगे इन अंतिम दिनों में to sons of God. खुदा के पुत्रों पे। They brought that forth now before the people वो उसको लेके आए अब खुद लोगों के सामने, that they see it. ताकि वो इसे देखें। There you now to this undenominational bride, अब यहाँ पर आपके लिए जो कि संस्था से बाहर निकली हुई दुल्हन है, ताकि उन्हें ये भेद दिखाएं। आमेन, क्यों दिखाएं? That you become pregnant by this book ताकि and आप- bring those names. ताकि आप गर्भ धारण करें उस किताब के द्वारा, उन नामों के द्वारा जो कि किताब में पाए जाते हैं। Sit down. कृपया बैठ जाइए, I have to show you something. मुझे आपको कुछ दिखाना है। From Paul, पॉल से, Irenaeus, आइरेनियस, Martin, मार्टिन, Columba, कोलंबा, Luther, लूथर, Wesley, वेस्ली and our brother Branham. और अब भाई ब्रैनम। It doesn't mean children are only born today. इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे केवल आज पैदा होते हैं। I'm going a little deeper. अब मैं आपको थोड़ी गहराई में उतार रहा हूं। In every age. हर एक युग में। And now here comes the point. अब यहां पर आती है मुद्दे की बात। Adam's bride couldn't wait. आदम की दुल्हन इंतजार नहीं कर पाई, Jehovah's bride couldn't wait. यहोवा की दुल्हन नहीं पूरी कर पाई। What season had they to wait for? किस खास मौसम का उन्हें इंतजार करना था? When God himself would come as an angel. जब खुदावन स्वयं एक बलि दूत के रूप में आए, To speak that book. कि आकर के उस किताब को बोले। How will Jehovah do it? यहोवा इसको कैसे करेंगे? He wouldn't morphe behind a man. वो एक आदमी के पीछे मॉर्फी होंगे, Use his voice, use his tongue. उसकी आवाज को इस्तेमाल करेंगे, उसकी जुबान को इस्तेमाल करेंगे, And not just speak word. और केवल वचन नहीं बोलेंगे, Seed word. Seed word. मोहर बंदित वचन। Seed, seed. अच्छा, बीज रूपी वचन, Seed word, gene word. बीज रूपी वचन, जीन वाला वचन। And what will it do? और वो क्या करेगा? A church will hear it एक कलीसिया इसको सुनेगी and bring forth children. और बच्चे पैदा करेगी। God bless you. My. So what would happen in the season? तो फिर उस खास मौसम में क्या Now I'm होगा? going to show you something. Sit down. मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, कृपया बैठ जाइए। The church started at Pentecost. कलीसिया चालू हुई पेंतीकोस्त के दिन। We'll sort of concentrate on this bride a little more हम थोड़ा ज्यादा केंद्रित होंगे इस तीसरी वाली दुल्हन के ऊपर, because that is where the message went to the Gentiles. क्योंकि ये वो स्थान है जहां से संदेश अन्य जातियों में गया। Are you with me till now? क्या अब तक मेरे साथ है? Christ's bride, which started at Pentecost, मसीह की दुल्हन जो की पेंतीकोस्त के दिन चालू हुई, the prophet has said, नबी ने इसको कहा, also failed. वो भी फेल हो गई। It committed adultery. उसने जिना किया। What happened? क्या हुआ? How did it begin? वो चालू कैसे हुई? The deeds of Nicolaitans. निकोलइयों के काम। Is that written in the Bible? क्या बाइबल में लिखा है? What season had the church to wait for? कलीसिया को किस मौसम का इंतजार करना था? पेंतेकोस्त के दिन उन्हें पवित्र आत्मा मिल चुका था। हाँ जी। सुनो ध्यान से। Now I'm going a little deeper. अब मैं थोड़ा गहराई में चल रहा हूं। They already had the Holy Ghost, उनके पास पहले से पवित्र आत्मा था, but they had to wait लेकिन उन्हें इंतजार करना था for a season एक खास मौसम का, when a particular messenger would arrive. जब एक खास संदेशवाहक का आगमन हो। What would that messenger do? वो संदेशवाहक क्या करेगा? I don't read that quote because time is going on. क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है, मैं उस हवाले को नहीं पढ़ रहा। First seal, para 61, 2 or something, 60, 61, 62. The plan. पहली मोहर 63 अनुच्छेद जहां पे वो योजना लिखी है। What is that plan? वो योजना क्या है? There's an announcement in heaven. स्वर्ग में एक घोषणा होती है। What is that? वो क्या है? A seal is opened. एक मोहर खुलती है। God bless you. Is that right?
ये क्या बात सही है? What happened? क्या हुआ? A mystery is unfolded. एक भेद खुल गया। What happened next? अगली चीज क्या हुई? The messenger of that age, वो उस युग का जो संदेशवाहक है, from Paul till this age, पौलुस से लेकर आज तक के, the messenger of that age takes that mystery जो संदेशवाहक है उस खास युग का, उस भेद को लेता है which was under the seal जो कि मोहर के नीचे थी, and speak that mystery. और उस भेद को बोलता है। What will start? ये किसने क्या चालू किया? A war. एक युद्ध। ये लड़ाई क्यों चालू हुई? ये लड़ाई दिखती है रिबका की कोख में, जब दो लड़ रहे थे। हर बेदारी दो लाती है जुड़वा पैदा और वो दो लड़ते हैं। जब भी पैदाइश का टाइम आया, किसी भी युग में एक युद्ध आया आमेन। कि दो किस्में थी जो लड़ेंगी। Now try to understand the message. अब संदेश को समझने की कोशिश करें। It is so exciting, not just exciting, this is the word. ये वचन है। What happened when the messenger preached that message? क्या हुआ जब संदेशवाहक ने उस संदेश को, जो भेद खुला, उसको प्रचार किया? Some children were born from that word. कुछ बच्चे, God bless you my brother, कुछ बच्चे उस भेद के द्वारा पैदा हुए, And others और बाकी who were of flesh, जो कि शरीर के अनुसार थे, they persecuted them who were after the promise. उन्होंने उनको सताया जो कि वायदे की संतान थी। For there children of promise and children of flesh in the days of Paul? क्या पौलुस के दिनों में क्या शारीरिक लोग थे और क्या शरीर की संतान? क्या शरीर की संतान और वायदे की संतान दोनों मौजूद थे? Were the children of flesh persecuting the children of promise in Paul's age? क्या शरीर की जो संतान है, वायदे की संतान को पौलुस के युग में सता रहे थे? Otherwise, why do you write Romans? नहीं तो उसने रोमियो क्यों लिखा? Why is he writing these chapters? इन अध्यायों को क्यों लिख रहा है वो? यस। What happened? क्या हुआ? The messenger took some names from the book. संदेशवाहक ने कुछ नामों को लिया किताब से And preached it in his age. और अपने युग में उसको प्रचार कर दिया, And that brought some children. और उससे कुछ बच्चे पैदा हुए। The church had to wait to listen to that mystery because the season was preaching of that mystery. कलीसिया को इंतजार करना था उस भेद के लिए, क्योंकि खास मौसम में वो भेद प्रचार किया जाएगा। क्या था वो मौसम जिसका इंतजार करना था? एक संदेशवाहक आता और एक भेद प्रचार करता। जब तक भेद का टाइम आ पाए, कलीसिया पहले ही गिर गई। Where did Irenaeus take from? आयरेनियस ने कहां से लिया? Where did Martin take from? मार्टिन भाई ने कहां से लिया? And I've preached to you before also. मैंने पहले भी आपके सामने प्रचार किया है। Seals were not open in their age. मोहरे उनके युगों में नहीं खुली थी। Seals are open now. मोहरे तो आज खुली है। But those messengers in spirit came this time. लेकिन वो संदेशवाहक आत्मा में इस युग में पहुंचाए गए, In this Lord's day. इस प्रभु के दिन में, And caught this mystery. और इस भेद को पकड़ा। Did Paul came to this time? क्या पौलुस भाई इस युग में आए? But when he that is perfect is come. लेकिन जब वो सर्वसिद्ध आएगा, Why is he talking about that? वो इसके बारे में क्यों बोल रहा He's है? gone to that perfect and seen it. उसने वो सर्वसिद्ध के पास गया और उसने उसको देखा है। Try to understand it. इसको समझने की And कोशिश catch that mystery. और उस भेद को पकड़ेगा And preach it to his church. और जाकर के अपनी कलीसिया में प्रचार It करेगा। brought some children. और उससे कुछ बच्चे पैदा हुए। All the children born in the 7 church ages had one source, the book. सातों कलीसिया कालों में जो बच्चे पैदा हुए उसका एक ही स्रोत है, और वो स्रोत किताब है। But listen to this. लेकिन इसको ध्यान से सुनिए। They had to come to this age. उन संदेश वाहकों को इस युग में आना था, But God kept something special for the last day people. लेकिन खुदावन ने कुछ खास रख छोड़ा था इस अंतिम दिन के लोगों के लिए। They don't have to go to another day. उन्हें किसी और दिन में जाने की जरूरत नहीं। They are in the very day when the book has been opened. वो तो उस खास दिन में रह रहे हैं जिसमें वो किताब लाई गई और खोली गई। Why? क्यों? To finish this commission. ताकि इस कमीशन को खत्म करे, To bring that last child. ताकि उस अंतिम संतान को लाएं, A word child. एक वचन वाला संतान, Born by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के मार्फत पैदा And बच्चा। then what next? और अगली चीज क्या? Watch the third pull then. तब तीसरे खिंचाव को देखना, Watch the power then. तब सामर्थ को देखना, Watch what happens then. तब देखना तब क्या होगा। This bride cannot be squeezed ये दुल्हन दबाव में नहीं लाया जा सकती, because
क्योंकि- if she has fulfilled the first two parts, अगर उसने पहले दो हिस्से पूरे कर and I लिए, want to show it to you. मैं आपको दिखाना चाहता हूं, Since the book was opened in 63, जब से किताब खुली है 1963 में, today is 2025, आज 2025 है, 62 years. 62 साल, In these 62 years, इन 62 सालों में the first two parts have been done. पहले दो हिस्से पूरे हो चुके। Look India, हिंदुस्तान को look देखें, Japan, जापान को देखें, look other countries, दूसरे देशों में look देखें, United States. संयुक्त राज्य अमेरिका को देखें, Every place has been evangelized by this gospel. हर एक जगह को इस संदेश के द्वारा इवेंजलाइज किया गया है। Be fruitful, फूलो फलो, multiply, बढ़ जाओ and replenish the earth. और पृथ्वी में फैल जाओ। Now comes the third part. अब आता है तीसरा हिस्सा, And the third part is the third pole. और तीसरा हिस्सा गॉड ब्लेस यू तीसरा खिंचाव है। I want to show this to you. मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, That's where the authority comes. ये वो जगह है जहां पर अधिकार आता है। Now what does God do? अब खुदावन क्या करते हैं? When King Theophany came in 1963 जब राजा थियोफनी आए 1963 में, to restore the fellowship which was in Eden, ताकि वापस बहाल करे उस संगति को जो अदन में थी, not with one or two, एक दो के साथ नहीं, but with the church लेकिन एक कलीसिया के साथ in its entirety, अपनी संपूर्णता में, not in part revelation, अधूरे मुकाशफे के साथ नहीं, but with full revelation, लेकिन संपूर्ण मुकाशफे के साथ, with full potentials, संपूर्ण सामर्थ के साथ, returning back to his church. वापस लौटते हुए अपनी कलीसिया पे। What for? काय के लिए? Not just to be fruitful and multiply. केवल फलवंत हो, भर जाओ पृथ्वी पर नहीं। That part is done ये now. वाला हिस्सा तो हो चुका है, Almost done. लगभग। We are just seeing the last ones. हम केवल कुछ अंतिम लोगों को देख पा रहे हैं कि आ रहे हैं We are वो। just seeing means we are just searching out the last ones. केवल अंतिम लोगों को हम खोज रहे कि वो आ रहे हैं। The last of the seeds. जो अंतिम बीज है वो। Now God starts another work अब खुदावन एक और काम शुरू करते हैं to tell them कि उन्हें बताएं, and subdue it. और उन्हें क्या बताएं? इसे अपने वश में कर लो, इस पृथ्वी को वश में In कर other लो। words, दूसरे शब्दों में, some people will literally become Jesus. कुछ लोग वास्तविकता में यीशु बन जाएंगे। Some living ones. कुछ जीवित, I'm not talking about the sleeping ones, मैं सोएमों की बात नहीं कर रहा, but some living ones लेकिन कुछ जीवित होंगे, will literally become Him. वो वास्तविकता में वो खुदा बन जाएंगे। They'll become God and His Word. वो खुदा और उसका वचन बन God जाएंगे। and them will become one. खुदा और वो सटीकता पूर्ण एक हो जाएंगे। That unity which was displayed in a prophet वो एकता जो कि एक नबी में दर्शाई गई, will be displayed in a bride. एक दुल्हन में दर्शाई जाएगी। To such an extent, इस हद brother, तक मेरे भाई, that it'll bring a rapture. ये एक रैप्चर लेके आ जाएगा। Subdue it. इसे वश में कर लो। Don't sit subdued. वश वाली हालत में ना बैठो। Don't be subdued now. अब तुम वश में ना किसी के आओ, You subdue. तुम इसे वश में कर लो। I'll give you that authority. मैं तुम्हें यह अधिकार दे रहा हूं। And now by the preaching of this message, और अब इस संदेश के प्रचार के द्वारा, by the opening of the book, किताब के खोले जाने के He's द्वारा, picking up a bride वो एक दुल्हन को ले रहे हैं to finish this commission. ताकि इस कमीशन को पूरा करें, खत्म For करें। that, इसके लिए He's building the stature of a perfect man वो एक सिद्ध मनुष्य का डील डॉल बना रहे हैं and putting a capstone on him. और उस पे कैपस्टोन रख रहे हैं। Perfect love, सिद्ध प्रेम, perfect faith. सिद्ध विश्वास। You can understand the message आप संदेश समझ सकते हैं। and watch the third pull then. और तब तीसरे खिंचाव को देखना, Watch the power then. तब सामर्थ को देखना। This capstone ये चोटी का पत्थर, is the extra oil ये है वो एक्स्ट्रा तेल which the only bride will have. जो केवल मात्र दुल्हन के पास होगा, The others will not. बाकियों के पास नहीं होगा। And it cannot be shared. और ये शेयर नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। I think you can understand it. मैं सोचता हूं कि समझ रहे होंगे आप। Now this is the plan. अब ये है योजना, The plan for reproduction and replenishing the earth and subduing it. जो योजना प्रजनन की, पृथ्वी में फैलने की और इसको अपने वश में करने की। I think now you understood the thoughts. मैं सोचता हूं कि अब आप इन विचारों को समझे होंगे। That's where the value of the book comes. ये वो स्थान है जहां पे मूल्य आता है इस किताब का। It was opened for this very purpose. ये इस खास मकसद के लिए खोली गई थी That the last Adam, कि अंतिम आदम, if you read 1 Corinthians 15, अगर आप पहला कुरिन्थियों 15 पढ़े, Christ is both second Adam and last Adam. मसीह दूसरे आदम भी हैं और अंतिम आदम भी हैं। Second Adam, first coming. दूसरा आदम पहली आमद, Last Adam, second coming. अंतिम आदम दूसरी आमद। Yes. Yes. Son of man then, son of man now. मनुष्य का पुत्र तब, मनुष्य का पुत्र Son of man आज। Alpha, son of man Omega. मनुष्य का पुत्र अल्फा, मनुष्य का पुत्र ओमेगा। And now when son of man comes today, और जब मनुष्य का पुत्र आ जाता है, the Adam in the last days, आदम अंतिम दिनों में with his Eve, अपनी
पुरानी हव्वा के साथ restored bride, बहाल की हुई दुल्हन, to finish the commission. ताकि कमीशन को पूरा करे। And lo, I am with you always. और देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। I, the cloud, will fellowship with you. मैं जो बादल हूँ तुम्हारे साथ संगति I, करूंगा। the angel, am always with you. मैं जो दूत हूँ हमेशा तुम्हारे साथ Wherever रहूंगा। you go, I will go. जहाँ कहीं तुम जाओगे मैं जाऊंगा। Bring forth children. बच्चे पैदा करो, Bring forth word children. वचन वाले बच्चे पैदा करो, And finally, और आखिरकार subdue this earth. इस पृथ्वी को वश में कर लो। Lord, I don't have that power. प्रभु मेरे पास वो सामर्थ नहीं I'll है। give you that power. मैं तुम्हें वो सामर्थ दूंगा। The earth is waiting for the manifestations of these sons of God, पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से ऐसे खुदा के पुत्रों की बात जोड़ रही है, who will bring these mysteries, जो कि इन भेदों को पैदा करेंगे, which will restore the earth back again. जो कि वापस पृथ्वी को बहाल कर देगा, And that will finish the commission. और ये खत्म करेगा इस कमीशन को। Now, what kind of bride will that be अब ये किस किस्म की दुल्हन होगी in the last days? अंतिम दिनों में? That is what will be next chapter. ये होगा अगला अध्याय। Exactly like Mary. ठीक सटीकतापूर्ण मरियम जैसी। That's the next chapter. ये अगला अध्याय है। I'll not cover it today. आज मैं इसको कवर नहीं करूंगा। That's where comes Mary. यहां पर आती है मरियम। Mary is the key symbol for a last day bride. मरियम जो है कुंजी वाला चिन्ह है अंतिम दिन की दुल्हन के लिए। Her nature, उसका स्वभाव receiving a messenger, एक संदेश वाहक को ग्रहण करना। be it unto me according to thy word. आपके वचन के अनुसार मेरे साथ हो। Not my will, but yours be done. मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। Whatever you said, amen. जो कुछ आपने कहा आमीन। Though it's very wonderful, यद्यपि ये बहुत ही अद्भुत है, I can't understand it, मैं इसको समझ नहीं सकती, but I'll not try to. लेकिन मैं समझने की कोशिश भी नहीं करूंगी। I'll say amen. मैं कहूंगी केवल आमीन। This message was not to be understood, but to be believed. ये संदेश समझने के लिए नहीं लेकिन विश्वास करने के लिए दिया गया। That's the character of Mary. ये है चरित्र मरियम का। And through that Mary bride, और उस मरियम दुल्हन के माध्यम a से virgin bride, एक कुंवारी दुल्हन will finish this commission. वो इस कमीशन को पूरा करेंगे। Now, are you able to understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? I may repeat this message some other places. हो सकता है मैं संदेश को कहीं और दूसरी जगहों पर रिपीट This करूं। is one major message I have preached in this year. ये एक मुख्य संदेश है जो कि मैंने इस साल में प्रचार किया है। This is one major thought while we are closing the year, God's opening these things. ये एक मुख्य विचार है जबकि हम इस साल को खत्म कर रहे हैं, जो खुदा ने दिया, जो मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ। Keep that in mind. इसको विचार में रखिएगा। It is in this background you'll understand why he's highlighting and why this message is highlighting women. अब ये इस भूमिका में है तो आपको समझ में आएगा कि ये संदेश क्यों उजागर कर रहा है, क्यों ये संदेश क्यों स्त्रियों के बारे में ज्यादा बोलता है? यस गॉड ब्लेस यू। Because it's talking about a church and that commission. वो बातचीत कर रहा है कलीसिया और उस कमीशन के बारे में। And you know, woman is a type of the church. और आप जानते हैं स्त्री जो है वो कलीसिया की तस्वीर है। So it talks about women, तो वो स्त्री के बारे में बात their करता है। dress, उनके कपड़ों के their बारे में, hairs, उनके बालों के बारे में, their paints. उनके रंग रोगन। Why is it talking? वो क्यों बात कर रहा है? Why is it talking women to be in subduance to their husbands? क्यों वो कह रहा है कि स्त्री अपने पति के ताबे में रहे? The reason is because she's a type of the church. क्यों? क्योंकि वो तस्वीर है कलीसिया की। I think you can understand this much. मैं सोचता हूँ कि आप इतना समझ पा रहे होंगे। God really bless, and I tell you, I have told it before also. मैंने इसको पहले भी कहा है। The real beauty of a girl is with her husband. वास्तविक खूबसूरती एक स्त्री की उसके पति के साथ होती है। When they are married, they stay together. That's her glory. जब वो शादी करते हैं और एक साथ रहते हैं, ये उसकी महिमा है। That's her glory. ये उसकी महिमा है। Never forget that. इसको कभी भूलना मत। Because God made them like that. क्योंकि खुदा ने उनको ऐसा ही बनाया था। And you cannot disturb and destroy that plan. और आप कभी भी बर्बाद नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते उस योजना को। Where is our opinions? हमारी ओपिनियंस, हमारी सोचना का, हमारी राय कहाँ है? What about our rituals? हमारी रीत रिवाज कहाँ है? What about our thoughts? हमारे विचार कहाँ है? They don't matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। What matters is what the word says. फर्क इस बात से पड़ता है वचन क्या कहता है। I think you're able to understand this. मैं सोचता हूँ कि आप इतना समझ पा रहे हैं। Never break that unity. कभी भी उस एकता को तोड़े ना। That is why इसीलिए when I speak about marriages, जब मैं शादियों के विषय में बोलता हूँ, Brother Branham also spoke about this and we also speak about it. भाई ब्रैनम ने भी इसके बारे में बोला, हम भी इसके बारे में बोलते हैं। It is a bad thing ये एक बुरी चीज है
It's almost like a curse ये लगभग लगभग एक श्राप समान है when you break a marriage. जब आप एक शादी को तोड़ते हैं। It's like a curse. ये एक श्राप की मानंद है। And if you are the instrument, और अगर आप वो औजार है, वो यंत्र है, God will not leave you blameless. खुदावंद कभी भी आपको ब्लेमलेस छोड़ेंगे नहीं, No, He will not. कभी छोड़ेंगे नहीं। The reason can be any. कारण कुछ भी हो सकता है, But if that unity of that man and that woman is broken, अगर एकता उस आदमी औरत के बीच में आ जाए और तोड़ दी जाए, तुम कारण बने, तुम कारण बनी, कुछ भी हो, God will not leave you guiltless. खुदावन आपको बिना गुनाह के छोड़ेंगे नहीं। उसका जवाब खुदावन अगर आपसे नहीं लेंगे तो आपके बच्चों में लेंगे या उनके बच्चों के बच्चों में लेंगे, कहीं वो जवाब लेंगे जरूर। That is why इसीलिए we plan to build them. हम योजना करते हैं ताकि वो एक साथ बढ़े, हम ये कोशिश करते हैं कि वे दो एक हों, वे दो एक हो, वे दो विभिन्न ना हों। And so is it with the church. और इसी प्रकार कलीसिया के साथ The spirit of denomination did what? जो संस्थागत आत्मा उसने क्या किया, It broke the unity between Christ and His church. मसीह और उसी कलीसिया की एकता को तोड़ दिया, And that was satanic. और ये शैतान की ओर से था, And that's death. और ये मृत्यु है। We don't want to be those instruments of death. हम वो मृत्यु के यंत्र नहीं बनना चाहते। ऐसी बातें बोलो कि किसी परिवार में प्रेम बढ़े। यस, ऐसी बातें कहो जिससे दो की समझ आगे और बढ़े, टूटे नहीं। क्योंकि अगर तोड़ती हैं तो आप तोड़ू बने, और आप एक दिन कारण बनेंगे कि आप थे जिनके कारण वो शादी टूटी, आप थे जिसके कारण वो परिवार बिछड़ा। आई डोंट वांट दैट। ये नहीं चाहता। एंड इफ समथिंग हैज हैपेंड इन योर लाइफ लाइक दैट, अगर कोई ऐसी चीज आपके जीवन में घटी हो, बेटर रिपेंट। मैं कहूंगा बेहतर होगा आप तौबा करें। ये सारी बातें ब्रदर कहां से आ रही हैं? हम एक तस्वीर देख रहे हैं मसीह और उसकी दुल्हन की, जहां से ये सारी तस्वीरें भी निकल के आ रही हैं। Amen. आमीन। So God really bless you खुदा ने आपको वास्तविकता में बड़ी बरकत दे। and go home and I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताऊंगा। Please, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ रहा, क्योंकि मैं बार बार, क्योंकि इंडिविजुअली पढ़ूंगा तो बहुत टाइम निकलेगा। आप पैराग्राफ 76 से मैं बताता हूं आपको, 76 से पैराग्राफ 133 तक पढ़ लें। कर सकते हैं ये? 76 से 133 भाग 2, स्पोकन वर्ड ओरिजिनल सीड, ये घर में जाके पढ़ लें। अब इसमें एक टर्म है जो वो अगली बार खोलना समझा, स्पर्म ऑफ ईव। ये लाइन लिखी है, स्पर्म ऑफ ईव नेवर हैपेंड। हव्वा का शुक्राणु कभी घट नहीं पाया। क्या हव्वा का कोई शुक्राणु था? Now what does this mean? अब इसका क्या मतलब क्या है? देखिए, ऐसे मैसेज पढ़ के चले जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो we'll see it next time maybe. इसको हम शायद अगली बार देखेंगे। The life sperm of Eve never happened. वो जीवन वाला शुक्राणु हव्वा का कभी घट नहीं पाया। मतलब क्या था? बोला जाता और शुक्राणु बनता, वो नहीं हो पाया जो मरियम में हुआ। Amen. The life sperm of Eve never happened. वो जीवन रूपी शुक्राणु हव्वा के अंदर कभी घट नहीं So पाया। can you read these paragraphs at home? क्या इन अनुच्छेदों को आप घर में पढ़ सकते हैं? God bless you. खुदा उन्हें आपको बड़ी बरकत दे। Amen. आमीन। Let's pray. आइए दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए। आज प्रचार हुआ खुदावन, और हमने एक रूपरेखा देखी इस योजना की जो आपने बागेदन में बनाई, जिसे आज इस पुस्तक के खुलासे के द्वारा आप पूरा करने जा रहे हैं। लगभग पूरा हो चुका है। अब खुदावन आप उस आखिरी हिस्से को भी पूरा करेंगे कि पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो। आपका नाम मुबारक हो। एक रैप्चर होना है और फिर एक कब्जा लेना है इस पृथ्वी का। ओ लॉर्ड, होने दें। हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो इस योजना में हमारे विचार, हमारी संस्कृति, हमारा सोच हाय लाए। इस कमीशन को लेके जो आपने हमें दी, हमें क्षमा करें। अगर हमने कुछ हम रोड़ा बने, हमें माफ करें। लेकिन दुआ है खुदावन की ये योजना आपकी हमारे जीवनों से पूरी हो। आपके साथ प्रार्थनाओं में जुटने का अधिकारी से फजल दें। आपका नाम मुबारक हो। ओह व्हाट अ मैसेज। आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए। आपकी बादशाही आए। आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह उस माफ करते हैं, अभी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं।
हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। ये बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन एंड आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक छोटी दुआ और करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे प्यारे भाई अमर सिंह को एक नई गाड़ी से आशीषित किया, जिसकी खुशी में वो एक मिठाई बांटना चाहते हैं। आपकी ओर से आशीषित हो, खाएं पिएं, आनंद मनाते हुए जा सकें। भाई अमर सिंह की गाड़ी उनको मुबारक हो। हर दुष्ट की चालों से विफल हो। ना मुझे, ना मेरे परिवार, ना किसी जिंदगी, ना दिल्ली कलीसिया की सदस्य, ना आलम की दुल्हन की सदस्य को दुष्ट आत्मा अटैक ना करें, वरना तो लोग के कुंड में देव डिस्ट्रक्शन के लिए बांधी जाएं, और वो कार हमारे भाई के लिए और परिवार के लिए उनके फलवंत हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।